मेरा दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस यस दिख रहा है जी स्क्रीन? यस 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 या सो जस्ट आई विल गिव मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो मैं बेसिकली प्लास्टिक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ बाय एकेडमिक्स एंड अभी ऑटोमोबाइल डोमेन में अभी 30 साल से काम कर रहा हूँ। फर्स्ट हाफ का अभी 12 साल के ऊपर आई वाज वर्किंग इन अ लार्ज ग्रुप इन साउथ इंडिया, टीवीएस ग्रुप। सेकेंड हाफ में अभी 15 साल अभी पूना में हूँ, एक एमएनसी में, ऑटोमोटिव एमएनसी में। सो दैट इज माय अदर देन मार्केट ट्रेडिंग मार्केट के अलावा का जो बैकग्राउंड है अभी सबके जरा मैं भी आई स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द मार्केट इन 2022 looking for financial freedom. Of course, it's a long way to go, but entered in 2022. Until then, I was hardly participating. मतलब एक 2 साल म्यूचुअल फंड्स एंड वेरी 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 rarely once in 3 years 5 years का कुछ स्टॉक खरीद के रखना, एंड देन मोस्ट ऑफ देम वेर इन लॉसेस ओनली. Excuse me, 1 minute, Gerard. या आराम से So most of them in some were little profit and some were in losses. So that was in my stock market. And with the help of community resources, मतलब mostly YouTube, Instagram का जो है उसके based on that, I started learning from Jan to June. So I started understanding the market. But strictly I have not taken any single trade for all these 6 months. From January to June मैंने एक भी trade नहीं लिया. ग्रेट Only I was understanding what and how, because मैं पहले मतलब what is NSE, what is BSE से सीखना चालू किया. And was doing paper trading from April to June. Paper trading किया. I did paper trading in TradingView and as well as in NeoTrade. दो नियो स्टॉक जो एप्लीकेशन थे, अभी अभी पेड कर दिया, तभी फ्री था. अभी पेड कर दिया. अभी ओनली 3 पर डे 3 ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस है, सॉरी फ्री है, बाकी कॉस्ट है. देन 22 जून से पार्टिसिपेट करना चालू किया स्लोली. आफ्टर दैट लेटली आई ऑलमोस्ट स्टार्टेड डूइंग डेली. So and still learning through every trade which I enter into, which I make sure that I'm learning something on every trade. And during this period तो जल्दी था, enthusiastic था काफ़ी, all asset classes में participate किया. स्टॉक, कमोडिटी, मतलब क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड तो नहीं किया, बाकी सब में करेंसी, ऑप्शन, फ्यूचर्स. बट रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं थे. मतलब कब कुछ sometimes it was I got it around good profit in a day around 7,000 plus 8,000 plus लिया. Some were losses, but ultimately it was not consistent. तो घूम फिर के everywhere it was about psychology. So I joined as Nilesh ji said, December 22 से मैंने ये मेंटरशिप प्रोग्राम साइकोलॉजी के बारे में ज्वाइन किया. एंड टू बी ऑनेस्ट, I have listened almost about could have gone up to 500-700 videos देखे होंगे YouTube में plus and all. So there is now no specific course or a kind of hand holding on specific focused on psychology के ऊपर कहीं नहीं मिला था. इसके लिए मैंने इसमें ज्वाइन किया था. Even though I evaluated many other courses to join, but this was for the specific for psychology purpose. So this is my brief background. I'll just okay. So now as I mentioned, तो मैं सिस्टम के बारे में बात करूंगा and how what I am following for the last 2 months and what results it is giving and how it is aligned to the principles. So with the permission of Nilesh ji, I have taken the shots of this slide and I am using it. So for my reference also, and of course I am using it in this presentation. yes. So if you see this 5 fundamentals, what that is, anything can happen in the market, means up down, आगे पीछे. जो we all know Adani saga, which was flying high till last 30 days back or even sometime back. Now so much of struggle it is going through. Every day lower circuit, otherwise higher circuit, lower circuit, upper circuit. So anything can happen in any stock. So nothing is firm.
you do not need to know what is going to happen next to make money. And I will not read through. सब हमको मतलब these are all the guiding fundamentals which Mark has mentioned, which Nilesh has summarized nicely and given. So the 7 principles. So we will see how that is integrating into हमारा जो trades है हम क्या करने वाले हैं, कैसा कर रहे हैं, उसका कैसा integrate हो रहा है. So that we will see how that is getting integrated into the trade, each one of them. The edge objectively define करना है, कैसा define करना है, क्या define किया है मैंने, I will explain. And predetermine the risk तो हमेशा that is one of the very important thing. तो risk कैसा define करें and how we manage it, and accept the risk and let go of the trade. So accepting the loss, जैसा नीले जी ने बोला, वो expenses accept करना and give away the expenses, and without hesitation and reservation entering into and exiting the trade. That is thing very important. And pay myself as the market makes money available. So please note this point. Actually आज का जो मेरा जो learning है, मेरा system है, it's all going to be based on this number 5 जो fundamental principle है, इसके ऊपर रहने वाला है. So as we go through, you will understand what is that, and it's very easy and very simple. And continuity monitor susceptibility making errors, so that everything and everyone we have to do that, and understand and absolute necessary of these principles consistent. Of course, there is no question about it, that never to violate them. So again, the 3 rules. Again, this is a screenshot from Nilesh's video. So वीडियो का लिंक है नीचे. So ये वीडियो से 3 रूल्स इन्होंने जो हमको बोला है, which, where and when. कभी मतलब किस पे एंटर करना है, कब किस में क्या एंटर करना है, एंड कब एंटर करना है, कौन सा वैल्यू में कौन सा जगह पे एंटर करना है, एंड कब एंटर करना है. These are the 3 things which he explained in 3 rule in this video. So this is another thing which is going to help us in setting up the system. So now we will go through that system on the 3 principle, which पहला वाला जो है वो which वाला देखेंगे कौन सा है. So this is going to be in that one. Basically it's an option selling strategy. So it's an option triangle, I would say. So in triangle, I don't know, many of you may be knowing about options triangle, options and expiry. एक थोड़ा सा उसमें overview दे देता हूँ, जैसा हमारा time है. Many people may not know. Like last week option के बारे में overview लिया था नीलेश सर ने, एक extensive full session लिया था. Still on overall, I will just talk about. There are current week expiry होता है, which expires on every Thursday. Every Thursday, the weekly option expires on both Nifty and Bank Nifty. And for Fin Nifty, the weekly option expires on Tuesdays. And every week there is a means the contracts are available, like first week, second week, third week. So for example, if you take March, the expiry will be on 2nd, 9th, 16th, 23rd, and supposed to be on 30th, but because of the Ramanavami holiday for NSE, it is going to happen on 29th for the month. Means एक working day पहले होता है अगर Thursday छुट्टी मतलब holiday होता है तो exchange के लिए. Similarly, in January 26th, January Republic Day was on Thursday, I believe. Yes. So the expiry was on 25th. So these are the option expiries. So what we will be doing, the selection or the trade for the answer to the question which segment में जो कौन सा में हम करने वाले. The system here, what I have defined is that I will enter or make the trade, or my trading will be in terms of monthly short triangle which expires on the last Thursday of the month. So that is the which का आंसर ये है कि लास्ट मंथ का जो एक्सपायरी है उसी में मैं एंटर करूंगा. एंड वन मोर थिंग, तो क्या है मतलब ओके विच वन, तो सिलेक्शन में उन्होंने सिखाया फेडिंग में एंटर करना है, नहीं तो ब्रेकआउट में एंटर करना है, ऊपर मतलब एनी दिस इन स्टॉक्स ऊपर जो जिसमें एंटर करना है. So like that he has given the direction. In that one, it is in directional. There can be a 2 way. One is long, which is short.
बोथ आर डायरेक्शनल. वी आर मींस वी हम एक व्यू लेते हैं, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करते हैं, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो शॉर्ट करते हैं इन स्टॉक्स और इन फ्यूचर्स. In terms of options, either we think that if market is going to go up, हम CE buy करते हैं, नहीं तो PE short करते हैं, मतलब put option short करते हैं. और if we are नीचे जाएंगे सोचते हैं तो we short CE and buy the put option. So this is when we take as a directional view. अगर हम सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगा तो this is a directional view of us, and accordingly how we place our trades and further proceed with it. If there is a non-directional view, that is mostly where this triangle comes in picture. तो triangle में न्यूट्रल व्यू रहता है, मार्केट कैसे भी जाए वी विल बी देयर इन बिटवीन, तो हमको पैसा आना है, मतलब वेदर इट गोज अप और इट गोज डाउन. So we take a strangle. So down the line I will explain what is strangle also. Nilesh can pitch in if I miss something, if anything needs to be added on that for somebody who knew, जो इनको understand करना है. So this is for any option buyer or a seller understanding. जो options chain का understand करना बहुत जरूरी होता है. So this is the option chain view. So how the option chain is for the people who are not that conversant, I will just quickly make this thing. So in this is the what is there you see in the left side is CE option, and this is ITM. CE का ये ITM options strikes है, which is less than the current underlying price of Nifty. I think Nifty is in 17,594, so 17,550 is the ATM. तो उसके नीचे जितना भी होगा वो ITM बोलते हैं, and whatever उसके नीचे, sorry, oh, something has happened. Not going off. I don't know. ठीक है, वो येलो में जो ITM है, येलो में जो है, या येलो में जो है दिस इज ITM. Similarly व्हाइट में this OTM. is ITM, and this is the OTM, and this is the OTM. ये NSE का साइड है, NSE. Yes, and this is the spot price, and you can see this is the ऊपर जो है, this is the lot size of 50, and this is here it is expiry. Actually मुझे दिख नहीं रहा है ऊपर का, वो जूम का ये आ जाता है. हाँ, एक्सपायरी डेट इज 9/3/23. Yes, 9/3/23 ये वीकली ऑप्शन का एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है. Yes. So you may see this IV, which is implied volatility, and delta theta. These are all some of the things which may help in our system down the line, or you can go without this also. If you know about this, it is well and good. If you don't know, it is still okay. So this is the option chain for the expiry 9, मतलब ये जो आने वाला expiry का है. So and this is for the next expiry. That is the monthly expiry, which is on the 29th of this month. So if you see, just why I given these two slides is basically to explain you how the option value changes here. Again, for somebody who is new to options. See, for example, if you take 17,050 का ऑप्शन लेते हैं जो लास्ट में है, और फर्स्ट में कोई भी ऑप्शन ले लेंगे, पुट ऑप्शन ले लेंगे, तो फॉर 17,550 और एनी ऑफ दीज स्ट्राइक्स you can see so much of difference in the thing. So for example, 17,550 is trading at 149 rupees LTP. Last traded price is 149 rupees for 550, and it is 1/3 for this current weekly option. So when you sell, going back here, if you sell any of these options, current में बेचते हैं, या you make a short strangle, or you make it in next week, or you make it in monthly strangle. When you sell the strangle, your margin is going to be very, very marginally reducing or marginally changing for
मंथली ऑप्शन और करंट वीक ऑप्शन महेश दोनों। जी, इफ इन केस अगर हिंदी में थोड़ा सा है ना ट्राई कर सकते हो तो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं समझ ठीक है ठीक है इसके लिए, बट ठीक आई है, आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए इंग्लिश ज्यादा इजी है, नो बट इफ प्रॉब्लम, पॉसिबल थोड़ा सा है ना। करते हैं। तो ये जो दोनों तीनों का जो ऑप्शन प्राइस है, सॉरी, मतलब जो मार्जिन मनी जो लगता है वो ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, बहुत बहुत कम फर्क रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लगता है एक स्ट्रैंगल बेचने के लिए, नेकड नेकड बोला तो विदाउट एनी हेज, एज विदाउट एनी विदाउट हेज, एज। विदाउट एनी हेज हम बेचते हैं वन स्ट्रैंगल ऑफ either current expiry or monthly expiry. You require about 1 lakh rupees. So for 1 lakh rupees, if you sell on a weekly option, so for example, if you sell 500 points away from the OTM, you will get 38 rupees or 3.8 rupees into 50 is what you are going to gain. So almost about what, 1000, 400 रुपया। 400 रुपया ये अभी वगैरह 9 मिलेंगे। तारीख का है ना, इसके लिए कम मिल रहा है। Correct. So similarly, but if you sell and if this option becomes zero, then you get 43, यस, almost about 2200 रुपया 2000, 21। 2500, यस 2400 रुपीज का आपको गेन होगा एट द एंड, बट स्टिल इट इज अ 4 वीक, 4 हफ्ते के बाद, अगर अभी लेंगे तो 3 हफ्ते के बाद, but यस। still we will see how this is going to benefit once you understand the monthly option versus weekly option. तो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मार्जिन मनी, मार्जिन जो आप डिप्लॉय करने वाले हो, तो आपको इसमें बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। वी विल सी हाउ दैट इज गोइंग टू बी मोर मच बेनिफिशियल एंड थिंग। तो इसमें आपको जो डेल्टा वगैरह पता है, probably you can have a one this thing for this thing. For example, if you see in the weekly option, the delta here is, if you see here for 1750 there is no delta here, तो delta है ही नहीं, मतलब, or rather if you see here in call option down below, say for 17800 it is 0.14, मतलब क्या है, 1 रुपया अगर या 100 रुपया मूव होता है, 14 रुपया होगा। 14 रुपया आपका ऑप्शन मूव होगा। अगर निफ्टी 100 रुपीज मूव होता है तो 14 रुपया ये ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। 100 rupees निफ्टी मूव होता है तो 14 rupees दिस ऑप्शन विल इंक्रीज, option price LTP will increase by 14 rupees. So that is the meaning of this delta. And if you see, this is for the weekly option, but if you see for the monthly option, if the for the same 17,800, if you see, for if the option moves or the underlying moves 100 rupees, 7900 जाता है, तो फिर then this will move 39 rupees. So almost this is 39% of delta. This option will move, and that other option will move by 14 rupees, which is almost half, less than half of it. So इसका जो मतलब है कि ये अगर बढ़ता है तो भी उतना तेज से बढ़ेगा, और घटता है कम होता है तो भी तेज से कम उतना होगा। तेज से कम होगा, along with the मीन्स उसके थीटा के साथ, जो थीटा जो टाइम डिके के साथ उतना होगा। टाइम डिके जो है वो इधर थीटा से डिनोट होता है। फॉर 17800 मतलब एक दिन के लिए ये 4 रुपया 442 रुपीज से कम होते जाएगा। एक दिन में 4 रुपये 42 पैसे कम होते जाएगा। मतलब आज मीन्स एवरीथिंग सेम, वोलेटिलिटी सेम रहेगा, अंडरलाइंग प्राइस निफ्टी का प्राइस सेम रहता है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, जो कुछ नहीं हुआ तो 4 रुपया 42 पैसा कल देके जाएगा। तो ये 121 विल बिकम 117 पॉइंट समथिंग कम हो जाता है, कम हो जाएगा। दैट इज द थीटा डीके एंड दैट इज द गेन। So for this one, you see that it will be less in the monthly option, and in the weekly option, it is 3.59. So weekly option fast. Now since it is on Saturday, you see that this is much, जो है ये कम है। जैसा ये वीकली एक्सपायरी के नजदीक आता है तो ये बढ़ते जाएगा। मतलब वेडनेसडे को देखेंगे, आप इधर देखेंगे तो 12 रुपया रहेगा, इधर सब 30 रुपया रहेगा, वैसा एक दिन में उतना घटेगा। तो जैसा वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के ज्यादा आता है तो उतना कम होते जाएंगे। सो
ये जो है ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना फॉर ऑप्शंस इधर बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए. सो दिस इज द ग्लैरिंग डिफरेंस बिटवीन वीकली ऑप्शन एंड अ मंथली ऑप्शन. So understanding this, we are entering into the system जो है that is for the monthly option system हम चुना है in the 3 rule of which rule. Now we will go to the where part. तो हमको कहाँ पे enter करना है? The system what I have defined is to enter the trade 500 points or 500 जो points है away from the strike. Means जो last closing है तो February 23rd को निफ्टी था 17,511. तो मतलब एटीएम हो गया 17,500. तो 17,500 से नीचे 17,000 विल बी द स्ट्राइक और ऊपर 18,000 इज द स्ट्राइक प्राइस. तो ये 17,000 और 18,000 का स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है. तो इफ वी सेल 17,000 ये आज निकाला है. सो यू माइट सी द वैल्यू डिफरेंट. मतलब मैं मेरा ट्रेड दिखाऊंगा तो तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएंगे. जो स्ट्रैंगल है ऐसा दिखेगा. जो उसका पे ऑफ ग्राफ जो है वो दैट विल बी देयर. मतलब ये जो है 17,000 के नीचे मतलब 16,901 के नीचे अगर निफ्टी नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा. अगर 18,099 के ऊपर निफ्टी जाता है दैट इज इधर इसके ऊपर जाता है तो आपको लॉस होगा. इसके बीच में कहीं पे भी रहता है मतलब 17,000 और 18,000 के बीच में रहता है तो हमको मतलब ये आज अगर मैंने सेल किया तो 4,935 रुपीज का प्रॉफिट होगा. सो दैट इज हाउ दिस ट्रायंगल शॉर्ट ट्रायंगल वर्क्स. So this is what for the second W, that is the where. So the answer is that we will be entering the trade. जो हम trade enter करेंगे 17,000 PE पे मतलब 500 पॉइंट डाउन नीचे और 18,500 पॉइंट ऊपर ATM प्राइस विच इज 17,500 ऑन 23rd जो मंथली एक्सपायरी का जो करंट जो फरवरी का जो एक्सपायरी हुआ मंथली एक्सपायरी हुआ दैट हैपेंड ऑन 23rd को मंथली एक्सपायरी हो चुका है. तो 23rd के ऊपर 23rd के बाद मतलब 23rd का 3:30 के बाद हम फरवरी का ऑप्शन ट्रेड नहीं कर पाएंगे. हम मार्च का ट्रेड कर सकते मगर फरवरी का ट्रेड नहीं कर पाएंगे. मार्च का ट्रेड तो कर ले पाएंगे. तो ये कब लेना है दैट इज द थर्ड व्हेन. तो यू सी जो मैंने ट्रेड लिया है 23rd को 15:29:30 एंड 15:28:40 ये टाइम में मैंने ट्रेड लिया है कि मैंने सेल किया है 17,000 PE एंड 18,000 CE 50-50 क्वांटिटी एंड एट दिस प्राइस. तो आज का प्राइस यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड. तो आज का प्राइस कम हुआ है बट ये जो मैंने ट्रेड लिया था दैट इज दिस प्राइस. दैट इज एट PE का ट्रेड था 87.95 एंड CE का ट्रेड है CE का ऑप्शन प्राइस है 105. So this is a very simple triangle. How was simple short triangle है 1 lot का addressing the 3 things. So I will give the complete trading plan भी दिखाऊंगा but this is for an overview of what is short triangle and how the trade is taken addressing 3 W's. Nifty monthly option for which thing no issue whether bullish है bearish है कुछ लेना नहीं है क्योंकि हमारा व्यू नॉन डायरेक्शनल है. तो हमको मार्केट कहीं पे भी जाता है कुछ लेना देना नहीं है. हमको चार्ट देखना नहीं है आपको टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं है कुछ नहीं करना है. कहीं पे भी हो तो हमको ट्रेड पे जाना है ट्रेड ले लेना है 500 पॉइंट्स ऊपर और 500 पॉइंट्स नीचे. सो दैट इज वेयर विच एंड व्हेन कब लेना है. यू कैन टेक बिफोर ऑल्सो मतलब आप वो मंथली ऑप्शन खत्म होने बहुत जल्दी ले लेगा तो लिक्विडिटी नहीं मिलेगा बहुत ट्रेडिंग नहीं होगा. लास्ट में लेंगे तो अच्छा रहेगा. तो मैंने लिया है वो लास्ट में दैट इज जस्ट बिफोर 1 मिनट क्लोज से पहले मैंने ये 15:39 और 15:28 मतलब 3:29 और 3:28 को मैंने मेरा ट्रेड लिया है. So this is whatever trade I have taken on 23rd of February for the March monthly option. Yes. So
दिस इज अबाउट सो जनरल अबाउट कि मतलब जो मैंने 3W का एड्रेस किया एंड जनरल ऑप्शन मतलब ट्रायंगल शॉर्ट ट्रायंगल क्या है वगैरह क्या है। तो अभी तक किसी का कुछ क्वेश्चन है तो देन आई कैन आंसर देन। किसी ने बैंक निफ्टी के बारे में पूछा था, बैंक निफ्टी में ये कितना पॉइंट रहेगा? नो बैंक निफ्टी आई हैव नॉट निफ्टी में टेकन किया। बैंक निफ्टी आई हैव नॉट डन वर्कड ऑन इट। बैंक निफ्टी में मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, बैंक निफ्टी में बहुत वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है, एक दिन में 1000 पॉइंट्स मूव होता है ऊपर, नेक्स्ट डे 1000 पॉइंट्स नीचे आता है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी, बैंक निफ्टी निफ्टी में में बहुत ध्यान देना पड़ता है बैंक निफ्टी में। तो में कोई एडजस्टमेंट करे इस सिस्टम में या नो एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट इज देयर। स्टॉप लॉसेस एंड यस बैक टेस्टिंग किया रहेगा ना अपने अल्गो टेस्ट पे या? नहीं, वो सब भी बात करने वाला हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली अल्गो टेस्ट में ये मैंने बहुत ट्राई किया था, अल्गो टेस्ट में वो मंथली ऑप्शन बैक टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। प्रोबेबली वी कैन, ओके, वी हैव टाइम टुडे तो हम ट्राई भी कर पाएंगे, वी कैन ट्राई वंस आल्सो। बट आई ट्राइड अ लॉट अल्गो टेस्टिंग करने के लिए, नहीं हुआ तो फिर मैं डायरेक्टली आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड इट इज गिविंग गुड रिजल्ट्स। ओके। तो किसी का क्वेश्चंस, you can ask the question, somebody is asking if any, when is the Q&A. देख लेता हूँ एक मिनट। कुछ और सवाल है? बैंक निफ्टी का एक सवाल था, 500 रुपया डिफरेंस होता। No, this is going to be करके यही Chavan, सवाल। Makkan Chavanji, this is going to be not an intraday trade, this is going to be a positional trade. This is going to be a positional trade. So स्टॉप लॉस कुछ रखना है क्या पूछ रहे हैं? स्टॉप लॉस रखना है, मैं I will come back on that. Just I will look for these questions and then come. I'm just looking at the chat. प्रीमियम डीके में कितना डिफरेंस रहेगा है करंट वीकली मंथली ऑप्शन में? करंट ऑप्शन में प्रीमियम डीके फास्ट होता है एंड यू हैव अ मोर रिस्क आल्सो। जो जितना मूव होगा दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अ वीकली ऑप्शन, मींस करंट वीकली ऑप्शन। फॉर द मंथली ऑप्शन, जैसा मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लेन किया था, मंथली ऑप्शन इन द स्टार्टिंग द डीके विल बी वेरी लेस, कम, बहुत कम रहेगा डीके, एंड जो वीकली ऑप्शन विल, जो इसमें डीके ज्यादा रहेगा, इसमें बहुत कम रहेगा डीके इन द करंट वीकली, सॉरी करंट वीकली ऑप्शंस में ज्यादा डीके रहेगा, मंथली ऑप्शन में कम रहेगा। So maybe some other questions, I don't know. अब इसके बाद टाइम रहेगा तो एक बार आपकी इक्विटी की सिस्टम भी बता देना, क्योंकि काफी लोग अभी जो है कि इतना बड़ा कैपिटल डाल के अभी पहले इक्विटी पे कर रहे हैं, तो मे बी they will like to know equity system also. Yeah, I will come. I have most of the questions, I have the answers below. Yeah. Okay, so I will proceed with my next section of particularly in this में क्या है, what is there in that. So तो ऐसे सेट कि मैं ये जो सिस्टम है, दिस इज ऑन द मंथली सिस्टम। तो ये मंथली का ऑप्शन चेन है, सो इट इज फॉर द 17,000 एंड 18,000। so this is the same option chain, and now if you see, this is the details of the complete trading plan. I'll explain one by one. As I said, ये जो है ये monthly short triangle है। मार्केट जो है या इंस्ट्रूमेंट जो है, दिस इज ऑन ऑप्शन डेरिवेटिव्स। देयर आर डिफरेंट मतलब जो निफ्टी को निफ्टी स्टॉक कैश बोलते हैं, निफ्टी फ्यूचर को फ्यूचर बोलते हैं, ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में ऑप्शन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो इधर बात कर रहे हैं, जो ऑप्शन डेरिवेटिव्स है, एंड जो इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो मंथली एक्सपायरी में करेंगे हम, वीकली या नेक्स्ट वीकली या उसके बाद वाला वीकली में नहीं करेंगे, हम मंथली एक्सपायरी का ही करेंगे। एंड ये जो रहने वाला है ये पोजिशनल रहने वाला है, मतलब डेली इंट्राडे में हम करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे या प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बुक करेंगे, मगर इट इज गोइंग टू बी एन ओवरऑल, कुछ नहीं होता है तो हम छोड़ेंगे। ये समझ लीजिए जो मंथली का आज चालू हुआ 17,000, आप पूरा मंथ 17,000 में रहने वाला है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हम करेंगे, अदरवाइज इट इज अ पोजिशनल स्ट्रेटजी, इट इज नॉट इंट्राडे। सुबह खोलना शाम को बंद करना वाला नहीं है। एंड मार्केट कंडीशन, कोई भी मार्केट कंडीशन हो, कर सकते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज कुछ भी हो, वी कैन डू, देयर इज नो प्रॉब्लम। टाइम फ्रेम
कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट इज ऑफ मंथ मींस डे टाइम फ्रेम. देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम यू वी हैव टू सी. ओनली ऑन द एंट्री अगर करते हैं तो और एग्जिट करते हैं तो 5 मिनट या 15 मिनट्स का देख सकते हैं. उसके ऊपर जब 5 मिनट के ऊपर नीचे जा रहा होगा तभी आप एग्जिट और एंट्री ले सकते हो. अदरवाइज ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है ये टाइम फ्रेम के ऊपर. इंडिकेटर्स क्या क्या यूज करना है, कोई भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं है. शायद थोड़ा बहुत आप इंडिया विक्स समझ सकते हो बिकॉज वो इंडिया विक्स इम्पैक्ट कर सकता है. प्रॉब्ली जिनको इंडिया वीक समझना है प्रॉब्ली वी कैन टॉक अबाउट इट. मतलब जो एंड ऑफ द सेशन में बात करेंगे. और पिवोट का जो है वो यूज कर सकता है लेवल्स अंडरस्टैंड करने के लिए. दिस इज फॉर रिस्क मिटिगेशन. अगर कितना रिस्क है वो थोड़ा समझने के लिए हम पिवोट यूज कर सकते हैं. अदरवाइज दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. ट्रिगर देर इज नन बिकॉज हम टाइम बेस्ड करने वाले हैं. इसमें देर इज नो ट्रिगर. ऐसा ये अभी चालू करना है, ये जो सिचुएशन ये कंडीशन हुआ तो ट्रिगर लेना है नहीं लेना है ऐसा नहीं है कुछ. इट इज अ टाइम बेस्ड ट्रिगर. मतलब जैसा हमारा मंथली एक्सपायरी का करंट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ से मींस 4 मंथ नेक्स्ट मंथ से करंट मंथ जब कन्वर्ट होगा तभी लेने वाला है. दैट इज द ट्रिगर. देयर इज नो कंफर्मेशन अगेन ऑन दिस ट्रेड. तो ट्रेड एंट्री दिस इज एक्चुअली द की पॉइंट ऑफ दिस टोटल थिंग. जो मैंने पहले सेक्शन में जो एक्सप्लेन किया, शॉर्ट स्ट्रैडल जो है वो जो आपको सब जगह पे मिल जाएगा, यही शॉर्ट ट्रायंगल है. जो मैंने सिस्टम मैंने फॉलो कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ द सिस्टम. इस पे क्या करना है, 2 लॉट सेल करना है 500 पॉइंट्स का कॉल ऑप्शन और एक ऑप्शन सेल करना है पुट ऑप्शन का. इसका क्यों है वो मैं डाउन द लाइन में बताऊंगा. व्हाई दिस इज लाइक दिस, व्हाई वी हैव टू सेल 2 call option and why we have to sell 1 sell option thing. Not why not only 1 and 1. So and I have sold it like this only last ये 3rd month है, 3 महीने से मैं कर रहा हूँ. and you can see I have attached my P&Ls and this thing also. From there you can see 2 call sell and 1 put sell for 500 options to start with. and जो टारगेट है जो 10 पॉइंट्स मतलब 1000 रुपया, when you sell 2 call options, जब जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 10 पॉइंट मूव होता है, ये इधर यू विल बी एट मींस इफ इट इज फेवरेबली मूविंग आपके तरफ मूव होता है तो आप 1000 रुपीज प्रॉफिट में होंगे. अगर इफ इट मूव्स इन नेगेटिव यू विल बी इन 1000 रुपीज लॉस. सिमिलरली पीई ऑप्शन इफ इट मूव्स 20 पॉइंट्स यू विल बी 100 पॉइंट के लिए 10 पॉइंट के लिए 500 मिलता है रुपीज एंड 10 पॉइंट्स के लिए 20 पॉइंट्स के लिए 1000 रुपया मिलता है. सो व्हेन इट इज ईटिंग 1000 रुपीज प्रॉफिट in both the side, if it is in CE also or it in PE also, you book the profit. Means you exit that leg only. बाकी जो other leg might be in loss or it might not be in that much of loss. दोनों situation हो सकता है. आप उसको कुछ नहीं करेंगे. Nothing you will do for the other side. Only the option, only the leg. जो CE leg है तो खाली CE leg को काटेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे. 1 जो वो 10 पॉइंट रीच करेगा आपका 1000 रुपीज का प्रॉफिट ओ लेग में मिलेगा. अगर सी पी में 20 पॉइंट्स मूव होके आपको मतलब कम होके आपको प्रॉफिट मिलता है पी में, वो लेग क्लोज करेंगे एंड सी लेग को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे. स्टॉप लॉस फॉर माई ट्रेडिंग कैपिटल इज अबाउट 2 lakhs. तो 2 lakhs के लिए मैंने 5x किया है विच इज अबाउट 10,000 रुपीज is my 5%, which rather I would say, so which is 10,000 rupees is my stop loss. और the sold option जो है, मगर मैं 17,000 मैंने जो 17,500 मेरा ATM था when I sold the first in February 23rd. If the market moves to 18,000, जैसा अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर आते जा रहा है मार्केट, today it is at 17,594 पे है, तो वो 18,000 में पहुंच जाता है तो मैं क्लोज कर दूंगा पूरा ट्रेड एंड आई विल एंटर अ न्यू ट्रेड विद 500 पॉइंट्स. टिल सच टाइम आई विल नॉट क्लोज द कंप्लीट स्टॉप लॉस, कंप्लीट बुक नहीं करूंगा. अगर एक लेग जो बाहर मतलब जाता है वो जाने दूंगा. मतलब नाउ आई विल शो द करंट सिचुएशन ऑल्सो वेयर आई एम इन दिस ट्रेड, यू विल अंडरस्टैंड दैट. सो आई विल नॉट कट द ट्रेड.
नेक्स्ट जब री एंट्री करना है, री एंट्री ऐसा करना है जैसे आपने एक ट्रेड, आपने एक लेग क्लोज कर लिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, समझ लीजिए आप 17,000 18,000 में किया, तो 18,000 का आपको कम होते होते आपका यू हैव ऑलरेडी कम डाउन, सो यू कैन टेक द नेक्स्ट री एंट्री, जैसा इमीडिएट क्लोज किया तो तुरंत विद इन 1 or 2 minutes यू टेक द ट्रेड फॉर द नेक्स्ट लेग, मतलब इधर 17,950 और 17,900 यू टेक द ट्रेड। अगर जो फास्ट जब मूव होता है, इन ऑर्डर टू नॉट टू लूज दैट, तो आपको ये बहुत जल्दी लेना होगा एंड देन टू टेक इट, मतलब टू कैच द मार्केट, वो मार्केट कैच करने के लिए आपको ये थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा इसमें, दैट इज द वन ऑफ ओनली ड्रॉबैक इन दिस। तो एंटर वन स्ट्राइक बिलो द क्लोज्ड स्ट्राइक, आप 18,000 का स्ट्राइक को क्लोज किया तो आप 17,950 ले सकते हो या 17,900 ले सकते हो। some people will not trade multiples of 50, for them they can trade in 900, but I will still, निफ्टी में बहुत लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी का कुछ इश्यू नहीं रहता है निफ्टी में, तो 50 मल्टीपल्स भी ले सकता है। आई हैव बीन ट्रेडिंग 50 मल्टीपल्स फ्रॉम लास्ट जून, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर मी, आई हैव नेवर फेस, मुझे कभी भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आया। सिमिलरली एंटर फाइंड, अगर ये जो है ये प्रॉफिट का, अगर सिमिलरली आपका पीई ऑप्शन, जब पुट ऑप्शन का प्रॉफिट बुक करते हैं, समझ लीजिए आप 17,000 का बुक किया तो आप 17,050 का ऑप्शन सेल करेंगे, एक स्ट्राइक ऊपर, क्लोजर टू एटीएम, दैट इज व्हाट यू विल स्ट्राइक आफ्टर बुकिंग योर प्रॉफिट। देन इफ यू आर कंप्लीटली, जैसा अभी 18,000 का पूरा हिट होके स्टॉप लॉस पूरा क्लोज करना पड़ा आपको, देन इन दैट केस आप पूरा मतलब उस तरफ, जब अभी समझ लीजिए अभी आने वाले दिन में, फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को 18,000 हिट होता है, तो वेडनेसडे आई विल क्लोज द कंप्लीट ट्रेड एंड फ्रॉम 18,500 एंड 17,500 का मैं ट्रेड एंटर कर लूंगा, सो दैट इज द री एंट्री आफ्टर स्टॉप लॉस हिट, सो दैट whenever I am hit stop loss, जो मेरा रेंज जो होगा वो 1000 पॉइंट्स का होगा। मैं उसका भी लॉजिक मैं नीचे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ व्हाई एंड हाउ दैट लॉजिक इज। नेक्स्ट एडिशनल कंफर्मेशन जो है, ये अगर मार्केट आपको लगता है कभी कभी सिग्निफिकेंट मूव होने वाला है, जैसा मेरे को हुआ था वो ऑन नेक्स्ट डे या बजट डे पे, बिकॉज दिस होल थिंग हैपेंड, मैंने बजट डे पे भी यही स्ट्रेटजी में ट्रेड किया था। बजट के दिन पे आफ्टर 12:30 द मार्केट मूव सो बिग एंड देन इट केम डाउन, तभी मैंने बाई किया था सी और पी ऑन अ वीकली ऑप्शन टू मिटिगेट द रिस्क। ये कब कर सकता है, जब व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन दिख रहे हो तभी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दिस, अदरवाइज इट विल बी अ रिस्की ऑप्शन। इफ यू आर एबल टू फुल टाइम डिवोट ऑन दिस, आप ये कर सकते हो, नहीं तो देन यू मे नॉट डू, or even if you do, it may not give that much of good result here if you are doing this। अभी ये करते हैं सी और बाई मिटिगेशन करते हैं, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का भी करके करना जरूरी होता है। यू कैन नॉट ब्लाइंडली बाई और सेल, सॉरी ब्लाइंडली बाई सी और कॉल और पुट खरीद के, इट विल बी ए नुकसान ओनली, इट मे नॉट हेल्प मच। प्रॉज एंड कॉन्स, ये जो है अभी जो है एक्चुअली देखा जाएगा तो आई हैव बीन मीन्स आई वुड से थोड़ा साइडवेज ही चल रहा है मार्केट ओवरऑल में देखा जाएगा तो। सो दिस 2 कॉल एंड 1 सेल, 2 कॉल 2 लॉट्स ऑफ कॉल सेल एंड 1 लॉट ऑफ पुट सेल इज वर्किंग ओके, बट डेफिनेटली देयर विल बी ए सिचुएशन जब आएंगे जब 2 पुट बेचना होगा और 1 कॉल बेचने का रिक्वायरमेंट आएंगे, वो मार्केट कंडीशंस के ऊपर है, वो हमको दैट वो चलते चलते वो अंडरस्टैंड करके वो चेंज करना होगा। दैट इज द व्हेन मार्केट बहुत तेज से गिरेंगे, जैसा अभी कोविड जैसा सिचुएशन था तभी मार्केट बहुत तेज से गिरा, तभी ये चेंज करने का जरूरत पड़ेगा। अदरवाइज जो भी मैं ग्राफ भी दिखाता हूँ, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड इज द वन, तो वो जब ऊपर नीचे जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ता है, ऊपर नॉर्मल वो जो 500-600 पॉइंट जो मूव होता है मार्केट कंडीशन, उसके लिए जरूरत नहीं है।
सो नाउ मैंने बोला था क्यों करना है. नाउ इफ यू सी आई हैव गिवन द वीकली ऑप्शन. नीलेश जी, ये ऊपर का जूम का बैंड कैसा निकलता है? आप उसको है क्या? बाजू में कर सकते हो, आपको मूव कर सकते हो, आपको कॉर्नर को या नीचे कहीं पे भी। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच. दिस इज वेरी ट्रबलसम. हाँ, तो बहुत परेशानी होता है, बीच में आता या देखिए, ये जो है ये 23rd, अभी वेरी रिसेंट वाला मैंने एग्जांपल लगाया. 23rd को जो था, व्हाट इज द वीकली ऑप्शन, एंड आई हैव कंपेयर्ड वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन विथ 1 लॉट एंड 2 to 1 लॉट. वो तीनों का मैंने कंपेयर किया है. तो इफ यू सी 511 इज द अंडरलाइंग प्राइस था. तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्टेड वाला है 18,000 17,000, एंड इसका जो प्राइस थे 9.5 और 9.5. एंड ऑन सेकेंड, जो वीकली एक्सपायरी का दिन है 2 मार्च को, 18,000 और 17,000 दोनों जीरो हो गया, क्योंकि द एक्सपायरी हुआ था 17,594 पे शायद. सॉरी, आई थिंक 17,594 पे नहीं हुआ था, कम में हुआ था शायद. आई एम नॉट श्योर. 17,594 शायद आज का प्राइस है, तो कम में हुआ था. सॉरी, ये 17,331 पे हुआ था. बेसिकली कंसेप्ट समझाइए है। हाँ, 17. तो ये जीरो हो गया था. तो इफ यू सी 945, 9 रुपी 45 पैसे आपको मिला था बेनिफिट, विच इज एक्चुअली 945 रुपीज इन टोटल फॉर बोथ द लेग्स. तो इसका जो रिटर्न है 0.9% ऑफ 1 लाख डिप्लॉयड ऑन 1 लॉट. तो मंथली ऑप्शन में देखेंगे तो दिस इज द राइट वन. एक्चुअली एक्सपायरी हुआ था 17,331 पे एक्सपायरी हुआ था. तो आई हैव नॉट अपडेटेड ये. तो 17,331 मंथली ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये 105 एंड 87.9 पे आप देखे होंगे. तो मैंने इसी पे भेजा था. यू हैव सीन माय ट्रेड इन 2 स्लाइड पहले. तो ये 1 लॉट बेचा. तो इसका जो हुआ था विच इज 2775 एंड 95, मतलब इधर लॉस, पी में लॉस, सी में बेनिफिट. तो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा होता, अगर मैं वीकली मंथली ऑप्शन खरीद के वीकली के ऊपर मैं बेच देता, तो मुझे 3,470 रुपीज का मंथली ऑप्शन में मुझे बेनिफिट मिलता. आज के मार्केट कंडीशन में, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आज के मार्केट कंडीशन में है. मतलब ये कैसा भी कभी भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ओके भी हो सकता है. So, but in this today's market condition, this is the return, which is 3.5% for this 1 week, 23rd से 2nd तक का. Now, if you see monthly option का जो 2:1 में मैं करता हूँ, if I do it on 2:1, where we require, जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है 1.8 लाख ऑलमोस्ट, और 2 लाख पकड़ लीजिए. 2 लाख में मतलब जो ये सेम 2745 और 9545 में मुझे इसका डबल मिलेगा. तो मेरा जो बेनिफिट है विच इज गोइंग अप टू 0.6%, विच इज अबाउट 7,355. So I will just share the Excel also, one second. Now if you see, this is the same Excel sheet जो मैंने उधर लगाया है. इधर मैं 2 करता हूँ, अगर मैं PE का भी 2 खरीदता हूँ, 2 बेचता हूँ, you see that the profit is going down. This is because आप when you observe, आप observe करेंगे, मतलब somebody might have observed, जब PE का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है. when CE का मूवमेंट है और बहुत तेज से मीन्स अप भी होता है और कम भी होता है. CE का जो है, सॉरी, PE का पुट ऑप्शन का जो है वो when it goes down faster, but when it comes up, it does not come up. मतलब जो ऊपर आता है उतना तेजी से, उतना आसान से ऊपर नहीं आता है, मतलब कम हो गया पुट का वैल्यू. तो इधर 8795 का पुट का वैल्यू, जब पुट नीचे जाएगा वो तेजी से जाएगा, मतलब ये 95 98 100 ये तेजी से जाएगा. जब मार्केट ऊपर जाता है, इसको कम होना है, पुट वैल्यू है, पुट का जो प्राइस है, पुट का प्रीमियम जो है वो कम होना चाहिए, मगर वो उतना तेजी से कम नहीं होगा. इसीलिए हम पुट को 1 लॉट बेच रहे हैं और कॉल को 2 लॉट बेच रहे हैं. दूसरा पॉइंट ये है, जब मार्केट नीचे जाता है, नाउ जो IV कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा,
जब मार्केट नीचे जाता है, जब आईवी बढ़ेगा, विक्स, इंडिया विक्स जो है वो वोलेटिलिटी का इंडेक्स है, वो वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ेगा। जब वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ेगा, ऑप्शन प्राइसेस ज्यादा होंगे। बहुत उगेंगे लोग, वो। Yeah. या आप ज्यादा मतलब बहुत लोग आप ऑब्जर्व किए होंगे, मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है फिर भी आपको बेनिफिट नहीं आ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है इन ऑप्शंस। इसके वजह ये है कि वो उसका ऑप्शन का आईवी जो है, वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप सो दैट इज द रीजन ये 2:1 रेशियो पे से मतलब सेल करना। अगर आप इसमें 3 करते हो, इसमें 2 करना है। अगर इसमें 4 लॉट करते हो तो 3 लॉट करना है। So you have to go 1 lot, or in that ratio you have to come down and then sell. Then only to address the volatility and the inherent जो VIX का जो difference होता है उसके लिए, वो दोनों understand करने के लिए, that is the main difference of the system and that is what is giving the benefit. Two things in it, दो चीजें हैं जो सिस्टम में, एक है सेम लॉट बेचना नहीं है, डिफरेंस रख के बेचना है, दैट इज द वन ऑफ द मेन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस जो है, जो जिनको सोचते हैं कि वो मैंने ले लिया ठीक है मैं एंड तक का रखूंगा, नो प्रॉब्लम, उनको इश्यू नहीं है, दे कैन कीप इट एंड टेक द प्रॉफिट। सेकेंड है जो है दैट इज अगेन फॉर दिस, ये जो प्रॉफिट बुक करना, जो 10 पॉइंट या 10-20 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक करना। तो दीज आर द टू थिंग्स जो मैंने पहला 7 प्रिंसिपल्स में मैंने बोला था, जो व्हेन मार्क डगलस का, व्हेन मार्केट मेक्स अवेलेबल टू यू मनी, टेक इट। सो मार्केट इज मेकिंग अवेलेबल टू यू मनी when it is moving, so we have to keep booking the profit and keep continuing the trade also by going into the next, rather taking means entering into the trade में enter होके हमको वो कंटिन्यू भी रखना है। और उसमें और एक बेनिफिट भी है इन द ऑप्शन चेन जो है, अगर आप ये एटीएम के जितना नजदीक में जाते हो, अगर मार्केट ऊपर जाता है, मतलब समझ लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, आप 17,800 में बेचा है, जितना तेजी से ये 121, ये जो स्ट्राइक प्राइस जितना तेजी से कम होते जाएगा इसका प्रीमियम, उससे ज्यादा तेजी से उसका नीचे वाला एटीएम में कम हाँ होते सर, जाएगा। आपका एक्सेल दिख रहा है, एक्सेल ही दिख रहा है, शेयर करना। ओके, जो 17,800 का प्रीमियम 121 है अभी, समझ लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है तो ये प्रीमियम नीचे जाएगा। जब ये मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट 17,500, 600 ऐसा 400 ऐसा नीचे जा रहा है, तो ये प्रीमियम भी नीचे जाएगा। जब ये प्रीमियम भी नीचे जाएगा, जो 17,800 का जो प्रीमियम है वो उससे 17,700 का प्रीमियम और तेज से नीचे जाएगा, क्योंकि उसका डेल्टा उससे ज्यादा है। अगर इधर देखेंगे इसका 0.39 डेल्टा है, इधर 0.48 डेल्टा है, तो और तेजी से जाएगा। तो मतलब जब हम जो 10 पॉइंट से हम मार्केट को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट री एंट्री करते हैं, तो और हम ज्यादा बेनिफिट लेंगे अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता है। तो होप मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है सबको समझ रहा है, मतलब मे बी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। आई एम, तो क्वेश्चन में देखेंगे, इफ नॉट आई विल रिपीट अगेन और यू मे सी दिस रिकॉर्डिंग व्हेन दिस वन। सो रादर लोग पूछ रहे हैं कि आप मार्केट में कितना टाइम रहते हो, यानी ये कैसे करते हो आप? आपको देखना पड़ेगा ना, जॉब संभाल के कैसे करें? नहीं, मैं मार्केट में ज़्यादा, मैं पहले रादर फ्रॉम February 1st वीक मैं मार्केट पूरा फुल टाइम, टिल February 1st वीक में मार्केट में फुल टाइम रहता था। बट मार्केट फरवरी के पहले, मतलब जैन दिसंबर फरवरी या उससे पहले, रादर आई वाज इन फुल टाइम, आई वाज नॉट इन जॉब फ्रॉम अक्टूबर टू February, तब मैं फुल टाइम रहता था। बट दैट फुल टाइम आई वाज ट्रेडिंग ऑन, जो हमारा इक्विटी ट्रेडिंग रहता है, मैराथन का जो ट्रेड रहता था वो उसमें फुल टाइम कॉन्सेंट्रेट रहता था, नॉट इन दिस।
इस पे एक बार ले लिया तो ले लिया, बस खत्म। नहीं, इसमें वो 10-10 पॉइंट में लेना है, वो सब कैसे जॉब पे रह के कैसे कर सकते हैं ऐसा कुछ? जहाँ पे वो वीकेंड को, तो इसमें जीटीटी ऑप्शन लगा के कर सकता है, एंड ओके। अदरवाइज यू कैन पुट अलर्ट इन द यूर ओके। ट्रेडिंग का अलर्ट रख सकते हो। मतलब एक मतलब 8 पॉइंट में आ गया तो तभी आप लग सकते हो। और ये जो ऑप्शन है उतना तेज से भी, अनलेस अदरवाइज एक मोमेंटम आता है ना, उतना तेज से मंथली ऑप्शन चेंज से नहीं होता। मूव भी नहीं होता है। जैसा वीकली ऑप्शन मूव होता है ना, उतना तेज हाँ, से मंथली ऑप्शन ट्रू मूव भी ट्रू नहीं होता है। ट्रू ट्रू। तो उसको आपको इतना जरूरत नहीं पड़ता है कि आपको बार मार्केट बार देखने का मार्केट देखते बैठने का जरूरत नहीं पड़ता है। जरूरत नहीं पड़ती। मकान सर को कुछ पूछना था, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। या उनको कुछ पूछना था, और एक बार ना, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना वो बहुत बढ़िया लग रही है, पर थोड़ी एडवांस है। यहाँ पे ऑप्शन भी कई लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि हम पहले इक्विटी पे कर रहे हैं ना। तो इक्विटी की आपकी सिस्टम भी एक बार बता देना, तो श्योर फिर श्योर। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। एक मिनट में उनको एक बार पहले क्वेश्चन ले लेते, इसके क्वेश्चन ले लेते। जी जी। ना, एक मिनट। हाँ, मकान सर पूछिए ना। सर गुड इवनिंग आप दोनों के लिए, सबके लिए। सर जी ये जी एक्चुअली जैसे आपने बोला ना अभी, ये लेग को प्रॉफिट बुक करने का 10 पॉइंट्स में, लेकिन मैं अभी करंटली मैं भी अभी पेपर ट्रेडिंग पे कर रहा था ऐसे ही, मतलब वीकली पे। तो जैसे प्रॉफिट आया, कॉल साइड में प्रॉफिट आया 10,000 का, मैंने बुक किया। फिर क्या हुआ, तो मैंने नेक्स्ट आगे वाला स्ट्राइक बाय किया। तो क्या होता है, मोस्टली मार्केट क्या ऊपर जाके रिवर्स मारता है ना, तो वो जब भी बाय करने के बाद वो फिर निगेटिव में आ जाता है। तो जी। वो सीन में क्या करने का फिर बाद में, मतलब लॉस भी हो समझा सकता ना नहीं। यू आर, मोस्टली क्या मार्केट। आप जो बोल रहे हो बाई करने वाले। भाई ने सेल ही करना है ना, नहीं एक प्रॉफिट होकर तो बाद में वापस नहीं, वही नेक्स्ट सॉरी, सेल। सेल कर रहे हैं ना सर। सॉरी, मैं तो बाइक वाइक हाँ। करके जैसे मार्केट में अभी जैसे हमने 2 लाख सेल किया बोथ साइड में, कॉल और उसमें। तो कॉल साइड में प्रॉफिट आया 1,000 का प्रॉफिट, जैसा आपने बोला 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट आके दिखा। तो मैंने क्या किया, उसको बुक किया और नेक्स्ट स्ट्राइक को सेल किया, फिर आगे वाली मतलब थोड़ी नीचे वाली। तो उसमें जैसी मार्केट डाउन होएगा तो नहीं, वो तो नेगेटिव में जाएगा ना भाई। हाँ नेगेटिव में जाएगा ना, ऑफ कोर्स जाएगा। मतलब आप जो बोल रहे हो ये वीकली ऑप्शन में बोल रहे हो या मंथली ऑप्शन में बोल रहे हो? नहीं, दोनों केस में तो सेम ही नहीं, होगा ना वीकली ऑलमोस्ट। वीकली ऑप्शन में ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे, मंथली ऑप्शन में प्रॉब्लम उतना नहीं आएंगे। उतना तो फास्ट मूव लेकिन नहीं होगा। और सर ये जैसे आपने स्टॉप लॉस रखा है 5x का, मतलब 10,000, तो वो तो पूरा काटने के बाद फिर से री एंट्री मारेंगे हम लोग। यस जी। अच्छा, सेम प्राइस पे। हाँ, वही अगर जो मैंने मार्च महीने के लिए मैंने 17,500 का एटीएम थे, तो मैंने 17,000, 18,000 और 17,000 में एंट्री किया, सेल किया। अगर समझ लीजिए मार्केट 18,000 पहुंच जाता है तो मेरा जी। पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हाँ हाँ। तभी और सर ये, हाँ तभी मैं पूरा का क्लोज कर दूंगा, दोनों लेग का क्लोज कर दूंगा, एंड आई विल एंटर अ न्यू न्यू थिंग। न्यूज टाइम। 18,500 पे एंटर करूंगा और 17,500 पे नया सेल करूंगा। यस। अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके, और किसी का हाथ ऊपर था, एक मिनट हम देख लेते हैं। वैद्य जी है, राज वैद्य जी, वैभव जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, वैभव जी, वैभव जी पूछिए। नहीं लो बात। वैभव जी, अनम्यूट करने को नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट चेक करते हैं। वैभव जी, आप पूछिए, आपने हाथ ऊपर किया। यस सर। सर गुड इवनिंग। हाँ सर, बोलिए। सर एक जस्ट क्यूरी, मुझे मतलब एक बात याद आई थी। इसके पहले भी हमने एक इस टाइप का शॉर्ट सेल किया था, तो उसके बारे में एक बार महेश सर से बात करनी थी। तो जैसा अभी प्रॉफिट की जो बात चल रही है, हमने एक ये ट्राई किया था बैंक निफ्टी में कि वीकली ऑप्शन का चार्ट बेसिस पे जो फर्स्ट व्यू अपने को लग रहा है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो एक सोच के एक 200 पॉइंट का हम एक कॉल या फिर पुट, जो भी सिचुएशन जैसा रहेगा वो हम शॉर्ट कर देते। और जैसे ही उसमें एक एवरेज 800 या 1,000 प्रॉफिट दिखने लगे, तो हम सेम टाइम पे उसको लॉक करने के लिए 200 पॉइंट अपोजिट शॉर्ट कर देते। मतलब कि हमने अगर पुट शॉर्ट किया है, तो जैसे ही 1,000 प्रॉफिट दिखने लग जाएगा हम एक कॉल शॉर्ट कर देते थे। तो उस बेसिस पे ये होता था कि अगर मार्केट कहीं भी घूमता है तो हमारा 1,000 प्रॉफिट जो है या 800 प्रॉफिट जो है वो लॉक हो जाता था। तो क्या ऐसा करना भी सही रहेगा? इसके पहले सर ने ऐसा कुछ क्या देखा है कभी, मतलब किया होगा कभी?
नहीं, मैं तो कुछ उससे क्या होगा, यानी तो 1000 पॉइंट आपके यानी अगर पहले ना नेगेटिव गया तो फिर वो लॉस है, और लॉक 1000 रुपए पे आपका यानी आगे कुछ होगा नहीं ना, आपने हेज कर दिया दोनों जगह पे। हाँ, हाँ अगर मतलब दोनों जगह पे ये हो रहा है, डीके हो रहा है, तो फिर अलग बात है। हाँ वो भी एक है, लेकिन उसका एक ये देखा था हमने, मैंने 1-2 बार किया भी था वैसा ट्रेड कि जैसा 1000 प्रॉफिट दिखने लग जाए, लेकिन उसमें एक रिस्क है कि अगर समझ लो मैंने अगर सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैंने पुट शॉर्ट कर दिया और ट्रेंडिंग सडन, मार्केट में प्रॉब्लम होगा, परसों जैसी मार्केट में, सही बात है। हाँ हाँ, अगर उसी डायरेक्शन में मार्केट अगर अपोजिट चला गया तो मुझे पहले लॉस हो जाएगा, दिखेगा। नहीं, ये अलग सिस्टम होगी, उसके बारे में फिर पूरा सोचना पड़ेगा। हाँ सिस्टम हाँ मैंने आप हाँ जो पूछ रहे हो सिस्टम में अलग हो गई। हाँ, वो सिस्टम अलग है, उसका मैंने डिटेल नहीं देखा था, मतलब जस्ट ट्राई किया था, लेकिन एक बार मतलब शेयर करते हैं ये बात इस पे शॉर्ट सेल की। ठीक है ना, एक बार देख लेंगे, हम अलग से देख लेंगे। ओके सर। चलो, सुनील जी पूछिए ना। सुनील जी। हेलो। हाँ सर। हाँ, मुझे वो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं यहाँ पे, लाइक जो एक्सेल पे उन्होंने दिखाया 87 पॉइंट का उन्होंने बाई किया था और कुछ 100 पॉइंट, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करेंगे ये चीज हम। नहीं, इधर स्टॉप इधर लॉस भी तो आप है ही नहीं, इधर स्टॉप लॉस है ही नहीं, इन एक्सेल में तो स्टॉप लॉस है ही नहीं। तो हाउ स्टॉप वी लॉस, मैन। स्टॉप लॉस ऐसा है, देखिए आप जब मार्केट 17,500 जब था तो आपने 17,000 का और पुट ऑप्शन बेचे हैं। अगर मार्केट 17,500 पुट ऑप 17,000 तक पहुंच जाता है तभी क्या होंगे, देखिए 17,500 से 17,321 जब मार्केट मूव हुआ तो आप देखेंगे तो 23 से 2 तारीख तक ये 5 सेशन में मार्केट काली 7 रुपया मूव किया, 8 रुपया मूव किया, ये देख सकते हो आप। आल्सो 200 पॉइंट मूव हुआ है, वो मगर सिर्फ 8 रुपया घटा है। 200 पॉइंट मूव होने के जब मूव हुआ है मार्केट 8, मतलब प्रीमियम जो है 8 रुपया मूव हुआ है। और कॉल ऑप्शन में तो सेम है, मार्केट 200 रुपया कम हुआ है, मगर जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 77 रुपीज कम हो चुका है। एंड दैट इज द रीजन, वही रीजन है हम उसको एडवांटेज, ये जो मार्केट का जो मूवमेंट का जो फायदा उठाने के लिए हम ये 2 सेल करते हैं और इसको 1 सेल करते हैं। हाँ, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि मैक्सिमम टाइम पे स्टॉप लॉस लगेगा ही नहीं। लगेगा ही नहीं, उसके लिए मैं बोलता हूँ, आई विल जस्ट शो यू दिस। देखिए ये जो है, अभी शायद मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये हाँ, निफ्टी का चार्ट दिख रहा है ना। यस यस। ये देखिए, ये जो है ये पूरा दिसंबर मंथ का, मतलब जनवरी मंथ का पूरा महीने का डेली चार्ट है। ये जो एक्सपायरी है, मैं 1 मिनट में डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। मेरा ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है क्या नहीं अभी तक। ये ट्रेडिंग में अभी? हाँ, भी आ गया ट्रेडिंग सर। में दिख रहा है अभी। जी, अभी देखिए ये 30 दिसंबर फ्राइडे, मतलब जो 29 का खत्म हो गया, दिसंबर महीने का जो ऑप्शन है, मतलब मंथली एक्सपायरी है, वो खत्म हो गया। जो फ्राइडे 30 दिसंबर को जनवरी मंथ का एक्सपायरी, मंथ का एक्सपायरी का चालू हुआ, तभी का इफ यू सी द क्लोजिंग वाज हियर, उसके पे दो थर्सडे का जो क्लोजिंग थे इधर थे, विच इज एट 18,900 18,181 पे, 191 पे थे, ऊपर देख सकते हो 18,191 पे है इधर। तो दैट इज द क्लोजिंग। तो हमारे जो स्ट्राइक, हमारा सेल होंगे 18,700, 200 500 पॉइंट, मतलब 18,200 इज द एटीएम, उसका 500 पॉइंट्स ऊपर 18,700, 1700 और इधर 17,700। 700। मार्केट इसके अंदर ही घूमता रहा पूरा जनवरी महीना, दैट इज वाई द प्रॉफिट कम्स। पर होगा तो ठीक ही है ना, इट इज नेक्स्ट ट्रेड वी हैव टू टेक एज पर ही सेइंग ना, ऐसा उनका Yes, सिस्टम and वही। similarly,
सिमिलरली आप फरवरी मंथ का देखेंगे तो ये क्लोज है उसका थर्सडे का, तो इधर से आप देखेंगे फ्राइडे का मतलब इधर, तो यू कैन सी दिस इज द रेंज 18,100 to 17,600, sorry 17,100. This is the range for February and ऊपर तक similarly गया ना वो, फरवरी में एक बार ऊपर तक एक फरवरी में टच गया, हुआ था ना सर? हाँ टच हुआ था, मगर ये एडजस्ट करते करते उसका फरवरी मंथ में एक्चुअली एग्जैक्टली स्पीकिंग ये जो तारीख था मुझे वो उसका बुक भी करना पड़ा लास्ट, यू विल सी इट इन माय नेक्स्ट स्टेटमेंट आल्सो, मैं बुक भी किया था इधर लास्ट। तो आपने वहां पे दोनों भी पोजीशन मतलब सारा पोजीशन आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया था क्या वहाँ पे? यस यस ऑल पोजीशन जैसे आपको 10 मतलब अभी जैसे पीएनएल में आप दिखाई दिया कि 10,000 मेरा माइनस है, तो आपने Right. पूरा दोनों साइड की पोजीशन क्लोज कर दी है, ऐसा होता है राइट? यस 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 ओके ओवरऑल मतलब मेरे दोनों भी पोजीशन मिला के व्हेनेवर आई विल सी 10,000 माइनस आई विल एक्सेप्ट। yes actually it will not be 10,000 माइनस, क्योंकि जब ये इधर मैंने सेल किया था सीई का ऑप्शन मैंने इधर सेल किया था 100 रुपये में समझ लीजिए, जैसा ये टाइम चलते चलते ये ऑलरेडी डी के काफी हो चुका है, पर बेसिकली स्ट्राइक प्राइस पे पहुंच गए, इसके लिए स्क्वायर ऑफ किया तो पर दो। यस तो मैंने लॉस भी बुक किया था तभी। यस एंड अभी इधर देखेंगे तो ये इधर 500 पॉइंट्स इज जो अभी 17,500 का मार्च महीने का है, 18,000 शायद इस महीने में पहुंच भी जाएंगे, एंड माइनस में 17,000 है, 18,000। और यहाँ पे नया राइट किया था जब ये जो लॉस बुक किया था इमीडिएटली नया राइट किया था जो 500 पॉइंट वापस। यस 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 आई रोट इट। ओके सर इसमें कॉल साइड कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ था इतने दिन डीके होने के बाद में? ज्यादा नहीं हुआ था एक्चुअली, इट वाज हार्डली कुछ 20 रुपीज के आसपास ऐसा कुछ तो था। ओके काफी लेट हुआ था ना क्योंकि यस इट इज तब तक काफी डीके हो चुका था वो, एंड मैं बीच में एडजस्टमेंट भी कर रहा था क्योंकि इधर नीचे गया ऊपर गया वो नीचे गया ऊपर गया ना, तो मैं एडजस्टमेंट भी करके वो आई वाज इन अ डिफरेंट स्ट्राइक, मैं 18,000 स्ट्राइक पे नहीं था तभी, मैं दूसरा आई वाज इन आई थिंक 7,900 ऐसा कुछ तो स्ट्राइक पे था, तो उसको क्लोज करना पड़ा मुझे। तो मतलब आप बफर भी लेके चलते होगे ना, समझ लो अगर 100 पॉइंट नजदीक आ गया तो भी आप ऑप्शन पोजीशन चेंज कर सकते हो राइट? समझा नहीं आपका सवाल। नहीं वो तो 100 पॉइंट नजदीक थे, दूर नहीं नजदीक थे। तो अभी समझ लो आपने 18,000 का पोजीशन राइट किया ठीक है, तो 17,900 पे मार्केट आ गया, आपको पहले दिन ही पता चल गया, तो वहां पे आप एडजस्टमेंट करते हो ऐसा? नहीं 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 नॉट एडजस्टमेंट नहीं करते, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। मतलब मिड मंथ में अगर स्ट्राइक प्राइस 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे भी आ गई तो भी आप स्ट्राइक प्राइस जो सेल की है ऊपर की 500 पॉइंट नीचे की 500 पॉइंट वो कंटिन्यू रखते हैं? कंटिन्यू रखते हैं, मैं उसका भी मैं बताता हूँ वाई एंड हाउ, जो उसका रीजनिंग है मैं अभी थोड़े दिन पे अभी जो मार्च महीने में वैसा सिचुएशन है अभी मैं उसका अभी रीजनिंग देता हूँ बताता हूँ, आई विल शो यू, एंड जो अभी आपको ज्यादा समझ लेंगे उसका क्यों नहीं करना है क्या क्यों करना है, जो एटलीस्ट मैं मेरा सेटअप ऐसा किया है, शायद ओके है नॉट ओके है अभी चल रहा है, तो उसका मेरा रैशनल है रीजनिंग है, मैं उसको आपको समझाता हूँ क्यों ऐसा कर रहा हूँ। थोड़ा पर्सनलाइज और थोड़ा सा एक्सपीरियंस यानी पर्सनलाइज सेटअप है, तो अभी कुछ लोगों को ज्यादा ऑप्शन राइटिंग और स्ट्रैंगल पता नहीं है, तो उनको बाद में मैं जब ऑप्शन चालू होगा तब समझा दूंगा। पर आज आप कुछ चीजें इसमें से जितना कुछ जो कुछ सीख सकते हो वो सीख लो अभी, ऐसा कह सकता हूँ जो चीजें एक आप और एक समझ। स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन, लाइक अभी हम लोग जो ओके नॉर्मल सुन इक्विटी में बोलिए। करते हैं, इक्विटी में हम लोग करते हैं राइट, तो हमारे पास हम कैपिटल हमारा हर पर ट्रेड में हमारा 100 रुपीज फिक्स है ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस वाले सिस्टम में 10,000 रुपीज आपने बोला कि पर ट्रेड में आपका रिस्क है ठीक है, तो ओवरऑल आपका कैपिटल कैसे मैनेज हो रहा है कि आप मिनिमम 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स ट्रेड कर सकते
मतलब 10 टाइम 20 टाइम, सॉरी समझा नहीं। यानी अभी जैसे हम लोग इक्विटी पे करते हैं, राइट? राइट, तो इक्विटी पे मेरा कैपिटल है 10,000, राइट? तो मैं बराबर। 100 टाइम्स ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने हर बार 100 रुपीज का रिस्क लिया है। ठीक है, तो 1% के हिसाब से हम वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो सो दैट मतलब कुछ भी हो जाए, बुरा से बुरा भी हो जाए, तो आई कैन ट्रेड फॉर मैक्सिमम 100 टाइम। राइट, तो वो यहाँ पे कैसे मैनेज होगा, वो समझ। वही तो 20 टाइम्स हम ट्रेड कर पाएंगे इफ इट इज मे बी नॉट 20 टाइम्स, बट जो जैसा स्टॉप लॉस है वगैरह में भी आप आगे चलेंगे तो मैं भी समझ में आएंगे वो, क्योंकि ये पूरा मंथली का ऑप्शन है तो उतना मूव भी नहीं होता है एंड स्टॉप लॉस उतना हिट करने का इसका विनिंग ये भी नहीं परसेंटेज रहता हाई है। है, मे बी रिवॉर्ड टू रिस्क उतना बढ़िया, वो भी अच्छा हाँ, लग रहा है, बट विनिंग परसेंटेज इज वेरी हाई। वो भी बताता हूँ, आई विल शो यू द विन परसेंटेज आल्सो इन दिस। तो मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ, देन विल टेक मोर क्वेश्चंस। मैं बेसिकली मैं सम ऑफ द एक्सप्लेन करना क्वेश्चन, चाहता था कि ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन ट्रायंगल यहाँ पे ना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट कैन बी इन इक्विटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट, इतना ही मैं अभी कहूंगा ना, क्योंकि वो वैसा एक्सप्लेन करना एग्जैक्टली इक्विटी के जैसे आप नहीं कर सकते एग्जैक्टली, इट इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। ओके, चलेगा सर, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। या सो मैंने पहले दिखाया था, दो दो लिया था एक्चुअली, आई टू थ्री थिंग्स अदर, सी पे दो, मतलब कॉल ऑप्शन पे दो सेल किया था, यू कैन सी सेम टाइम पे। ये जो है ये मार्जिन मैनेज करने के लिए इसको स्प्लिट करके लेना पड़ा, तो 18,000 सी पे दो 50-50 का दो लॉट और सी का एक लॉट। तो एक ही जो 2 लाख है उसमें एक ही लॉट होता है, तो मैं एक ही लॉट करता हूँ हमेशा, कुछ भी हो। जब मैं ऑप्शन बाई भी करता था मैं तभी एक लॉट से ही करता था, मैं एक लॉट से ज्यादा करता नहीं था। वेन एवर ओनली कभी ये है तो 2 लॉट, नॉट इवन, मतलब दैट इज वेरी हैंडफुल ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक लॉट से ही मेरा पूरा ट्रेनिंग का ही कर रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं फंड डिप्लॉय नहीं किया मैंने, तो एक लॉट से ही चल रहा मेरा। तो यू कैन सी दैट दिस इज द कर्व, जो ये कर्व जो पे ऑफ कर्व है ऐसा बैठेगा, जो नीचे जो है वो 16,842 तक का है, ऊपर 1879 तक का आपको ब्रेक इवन मिलेगा व्हेन यू सेल 2 लॉट्स ऑफ सी एंड 1 लॉट ऑफ पी, एंड द प्रॉफिट विल बी इफ नथिंग चेंजेस, इफ मार्केट इधर ही रहता है तो आपको ज्यादा, ये रेंज के अंदर रहता है, ये रेंज के अंदर रहता है तो प्रॉफिट होगा 7,885। तो ये हमने देख लिया है व्हाट इज क्योर रैशनल क्या है, 500 पॉइंट ऊपर का और 500 पॉइंट नीचे का, और ये पूरा बाकी पीछे महीने का क्या है, दैट वी आर सीइंग, एंड इसके वजह से वो ज्यादा हिट करने का जरूरत ये नहीं आता है ये सिचुएशन। देखिए ये जो है ये मेरा 24 मतलब मार्च महीने का 24 से लेके सेकेंड तक का है, जो आपको आप जो मेरा सवाल का जो बोल रहे हैं ना, जो अगेन गोइंग बैक टू आई हैव पुट अप ईच एंड एवरी पॉइंट, जो मार्क डगलस का जो पॉइंट के लिए मैंने ये किया है। देखिए जब मंथली ऑप्शन का ये भी एडवांटेज है, जो मंथली में जब मंथली का 1-2-3 में आपको अच्छा खासा बेनिफिट प्रॉफिट मिल जाता है, मार्केट कहीं पे भी जाएगा तो, ये मैंने हर मतलब तीनों महीने में देखा है व्हेन यू आर इन द मंथली का, क्योंकि ऑप्शन आप 500 पॉइंट ऊपर और नीचे रहते हो व्हेन यू एंटर द ट्रेड, और एक ही दिन में 500 पॉइंट ऊपर नीचे जाना इज अ वेरी, कहीं न्यूक्लियर बम गिर गया, बॉम्ब गिर गया, कोरोना हो गया, वैसा ही सिचुएशन में उतना मूव होता है, वंस इन अ ईयर मूव होता है या वो ट्वाइस इन अ ईयर मूव होता है ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज उतना पॉइंट मूव नहीं होता है निफ्टी में। अगर मूव हो गया तो फिर देन वो तो कटेगा ही कटेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन ऑप्शन इन दैट। तो क्या है, तो आप 3 दिन में आप अगर देखोगे तो पहले जो वीक में या पहले 3-4 दिन में मैंने ऑलरेडी 1100 रुपया कमा लिया, तो आई एम हैप्पी टू गिव 10,000 रुपीज। जब आप नीचे मतलब 5,000 पॉइंट जाएगा, मतलब 500 पॉइंट्स बाद में, मतलब 15 सेशन के बाद जाएगा, तो भी उतना पहुंचेगा ही नहीं वो।
तो उतना पहुंचेगा ही नहीं, मेरे को नुकसान। आई विल शो यू अभी का, मैंने करंट सिचुएशन में दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये मेरा करंट अभी दिख रहा है, मेरा पीएनएल। ये मेरा आज का सिचुएशन है, जो मैं 6000 रुपीज माइनस में हूँ। ये जो ट्रेड है मैंने क्लोज करके, जो मेरा हुआ था 5th में इसको मैंने ओपन रखा है, इसको क्लोज नहीं किया है। तो इसको जो है, मैं अभी 17,800 पे हूँ। जब तक ये 17,800 मार्केट पहुंचता नहीं है, मैं ये काटूंगा नहीं। 17,800 जब पहुंचेगा तभी मैं काटूंगा। मार्केट जब 17,800 पहुंचेगा तभी काटूंगा। अदरवाइज 10,000 माइनस जो होना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जो तब तक वो जाएगा तो तब तक ये भी इंक्रीज होते जाएगा ना, मुझे ये भी देते जाएगा ना पैसा। सही बात। दिस ऑल्सो विल कीप ऑन गिविंग मी मनी। जो पीई ऑप्शन है वो तो घटते जाएगा, वो भी पैसा देगा। तो ये बैलेंस होते जाएगा तब तक। राइट। तो जब तक ये 17,800 पहुंचता है तब तक मैं नहीं काटूंगा इसको। So this is how the stop loss is managed and the current situation. सर इसमें एक सवाल ये भी था कि ये जब आपने सेटअप लगाया तो इसमें जैसा लास्ट टाइम भी नीरज सर के साथ में बात हुआ था कि मार्जिन कम करने के लिए जो स्मॉल प्रीमियम वाले जो कॉल या पुट रहते हैं वो अपन बाय करते हैं, तो वैसा करके देखा था सर आपने इसके पहले इसमें? देखा है मैंने उसका, किया था इन जनवरी। आई डिड दैट एक्चुअली। जनवरी महीने का जो मैंने किया, सॉरी दिसंबर का किया था, तभी किया था मैंने। मगर क्या है, वो नुकसान ही होता है, मतलब यू विल एंड अप लूजिंग ओनली। इट इज बेटर टू, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। मुझे वो कम करके ज्यादा नहीं लेना है, मुझे मार्जिन कम करके, मार्जिन कम करते हूँ कि क्या है, मार्जिन क्यों कम करते हैं हम, हमको ज्यादा लेना है, मतलब जो ज्यादा लॉट्स लेना है उसी के लिए लेते हैं। मगर ज्यादा लॉट में लेते हैं तो हमारा रिस्क भी उसके हिसाब से बढ़ता है। तो मुझे वो करना ही करना था, तो मैंने अभी नेकड ही सेल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते थे कि मैंने दो नेकड ही सेल करके रखा है। नहीं, लेकिन सर कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पैसा अपने पास अगर कम है, मार्जिन अगर कम है, भले अपन उसको जैसे स्मॉल प्रीमियम के अगर लेते हैं और एक ही लॉट, जैसा आपने ये स्ट्रेटजी दिखा रहे कि 2 लॉट कॉल के और 1 लॉट पुट का, तो ये स्ट्रेटजी अगर कंटिन्यू करते हैं कम प्रीमियम पे, कम मार्जिन पे, कर सकता है। बट देन आपका जो रियलाइज्ड जो प्रॉफिट होगा उतना नहीं आएगा, क्योंकि वो जो बाई कर रहे हो वो तो जीरो होते जाएंगे, वो तो जीरो होते जाएंगे उतना आपको ये होगा। मतलब दूसरा बात क्या है, वो डिप्रिसिएशन पकड़ना पड़ेगा, समझ लो, कंसीडर। देखिए जब सर ये है ना, जो बोल रहे हैं ना सर, ये एक्चुअली वीकली स्ट्रेटजी में चलेगा। वीकली में क्या होता है सर, जैसे हम कोई ऑप्शन एटीएम का सेल करते हैं, तो अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, जैसे 1.5 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है, उसको हम 50,000 के अंदर लेके आना है। उस समय क्या करते हैं हम, जैसे T100 में सेल किया है, T100 में सेल किया है, तो उसके बाद जो अमाउंट बन रहा है 1 लाख के ऊपर बन रहा है, तो उसको हम 50 या 50 से नीचे लाना है। तो क्या करते हैं, 5 रुपए 10 रुपए के जो ऑप्शन होते हैं उसको सेल या बाय करके छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा अमाउंट कम हो जाता है, कैपिटल कम हो जाता है। हेलो जी। नहीं, मंथली में अभी उन्होंने ये सिस्टम बनाई है, उनकी ये सिस्टम है, तो वो ये सिस्टम समझ लो, बाद में जिसको जो एडजस्ट करना है कर ही सकते हैं, वो थोड़ा करके देखना पड़ेगा ना। हाँ नहीं सर, वो सर की सिस्टम तो सही है, लेकिन वो जो सर बोल रहे हैं ना, वो उनके लिए मैं बोल रहा था। देखिए उसमें उतना जो प्रीमियम का जो रेट है ना, उसमें मैंने करके देखा। जो वैभव जी का जो सवाल है ना, आपको ऑप्शन में उतना बेनिफिट नहीं उतना प्रीमियम कटता नहीं है, वो खाली वेस्ट ही जाता है। तो उसके वजह से मैंने किया था, योर क्वेश्चन इज राइट, मैंने किया था और फिर छोड़ दिया। मैंने जनवरी मंथ में किया था हेडजिंग के लिए, उसका उतना ज्यादा बेनिफिट, अगर आपको हेडजिंग उतना बेनिफिट लेना है, समझ लीजिए आप 18,000 पे सेल कर रहे हो कॉल, आपको हेजिंग लेना है तो आपको 18,400 18,500 पे आपको बाई करना होगा, तभी आपको उतना मार्जिन बेनिफिट मिलता है। आप जाके 19,500 में खरीदते हो
कुछ नहीं मिलता है कुछ नहीं मिलता है आपको, 10 उतना ही 15 पे हजार करना, कम। उतना भी नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। और उसमें समझ लीजिए इसमें मैंने नहीं 10-15 हजार रिक्वायरमेंट कम होता है सिर्फ। हाँ रिक्वायरमेंट कम होता है, समझ लीजिए मैंने 100 रुपये में बेचा, मंथली ऑप्शन में उसका बाई प्रीमियम जो होगा वो 9 रुपया होगा, 10 रुपया होगा। तो आपको जो मिलने वाला जो है वो उतना कम होते जाएगा, एंड आपको बेनिफिट भी नहीं, एंड यू आर लूजिंग ऑल्सो। तो इसके लिए मैंने नेकेड सर ये ओके मंथली में नहीं है सर, मंथली में नहीं कर सकते, मंथली में वही है, वो प्रॉब्लम होता है। मंथली में नहीं कर सकते। ओके सर, आप दिखाइए आगे का मेरे हिसाब से बाद दिस में। इज शिवाजी जी क्या पूछना था आपको? कुछ पूछना था शिवाजी जी, आपने हाथ ऊपर किया। ठीक है, आप आगे बताइए सर, क्योंकि सभी लोगों को इक्विटी का सिस्टम भी एक शॉर्ट में जानना है, क्योंकि इक्विटी वाले ज्यादा है अभी फिलहाल। ओके। इतना बड़ा कैपिटल से किसी को अभी स्टार्ट नहीं करना है, बट सीखने को कुछ मिल रहा है तो सभी लोग इंटरेस्टेड है। बोलिए। या जो ये फरवरी का है, यू सी दैट फरवरी का पूरा ऊपर नीचे गया था, तब भी फरवरी का खाली पूरा ट्रेडिंग सिस्टम आप देख सकते हो इसी में ही हुआ है, बाकी कुछ नहीं। ऑल आर दिस ओनली, नो अदर ट्रेड्स। ये जो जीरोधा का अकाउंट है वो ऑप्शन का ही करता हूँ, और यही सिस्टम चलता है। और ये कैपिटल 1.5 रहेगा ना, एटलीस्ट 1.5 1.6। 1.5 1.6 था, तो फिर अभी वो ये सब प्रॉफिट सारा इकट्ठा होके अभी 2 पे है वो का अकाउंट बैलेंस। ओके, तो ये कैपिटल 1.5 के या ऊपर। ये 3 महीने का है, मतलब ये Okay. मार्च, फरवरी और ये जनवरी। ओके, तो यही है। सो सम ऑफ द थिंग ये नीचे भी बात करेंगे इसमें। बेटर रिटर्न्स जो मंथली में मिलता है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको। और इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होके मिलता है। जैसे आपने मंथली का पहले मंथ का 2-3 दिन में जैसा आपने किया, सेल कर लिया आपने, 10,000 रुपीज ले लिया, तो आपका फियर चला जाता है। मतलब अभी क्या है, कुछ नहीं देना है तो भी वो प्रॉफिट से देना है। 11,000 रुपये ले लिया अभी, पहले वीक में 11,000 रुपये में देना है, तो भी मैं 11,000 रुपये दे दूंगा जितना देना है, नो प्रॉब्लम। और इवन इफ इट गोज डाउन इट इज फाइन, स्टिल फाइन। So this gives lot of confidence, और fear निकल जाता है by doing this system. That is what my feeling and I have learnt in this. जैसा मैंने बोला था, वीकली बाई कैन बी मिटिगेट, मगर इसके लिए स्क्रीन पे बैठना जरूरी होता है, टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी होता है। अदरवाइज वेरी लेस स्क्रीन टाइम। अभी जो मैं हार्डली स्क्रीन टाइम देता हूँ, स्क्रीन टाइम नहीं है मेरा अभी हॉनेस्टली। फरवरी से 10 से मेरा स्क्रीन टाइम कुछ भी नहीं है। और टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं करना है अभी। आई एम नॉट डूइंग एनी टेक्निकल एनालिसिस, नो चार्ट पैटर्न एनालिसिस, नथिंग फॉर दिस। एंड सुटेबल फॉर लो वीक्स, व्हेन जब नॉर्मल शॉर्ट ट्रायंगल बेचते हैं और वीकली ऑप्शन, तो आपको प्रीमियम कुछ भी नहीं रहता है। तो आपको 1-2 दिन में आप बहुत रिस्क में आ जाते हो, मतलब 200 पॉइंट में आपको सेल करना होता है वीकली ऑप्शन में, विच इज एट वेरी रिस्क कंडीशन। सो दैट इज वाई मंथली ऑप्शन इज बेस्ट इन द लो वीक्स व्हेन ऑप्शन प्रीमियम्स आर वेरी लो। एंड ये जो है, ये जो इंट्राडे में ना किया, तो ये जीटीटी ऑर्डर पे आप कर सकते हो। तो 10 पॉइंट का जीटीटी ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हो, वो अपने आप हिट होगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, सब कुछ क्लोज, नो प्रॉब्लम। यू नीड नॉट हैव टू सी, आपका ट्रेड देखने का जरूरत ही नहीं है कोई भी टर्मिनल पे या सिस्टम पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी। एंड वीकली हेज ऑप्शंस कैन बी डन, हमने बात किया, मगर उतना रिडक्शन नहीं होता है मार्जिन में, और ओवर ट्रेडिंग नहीं होता है। मैं उसका भी डिटेल दिखाऊंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं होता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत अच्छे से के इम्प्रूव होता है विद दिस वन। अभी जो मैंने ग्रुप में भी डाला था, ईच एंड एवरी पॉइंट जो लिखा है फंडामेंटल्स के लिए, हाउ इट इज अलाइंड एंड लिंक्ड टू दिस सिस्टम। देखिए, ये जो मार्केट कैन, एनीथिंग कैन हैपन। इन जनवरी मार्केट मूड अपसाइड, इन फरवरी मूड डाउन, एंड मार्च में मूव अप हो रहा है। तो कुछ भी हो, दैट इज ओके, वी कैन स्टिल मेक थिंग्स मनी। मैंने दिखाया, मैंने 3 महीने में किया पैसा। नीड टू नो वेयर इट इज, मार्केट इज मूविंग, हमको जानने का जरूरत नहीं है, हम नॉन डायरेक्शनल करेंगे। और रैंडम आउटपुट है, तो मैं इधर भी मेरा 15 विन हुआ, जनवरी में 3 लॉस हुआ, फरवरी में 17 विन एंड 2 लॉस, और मार्च में 6 विन, अभी तक 6 विन है और 0 लॉस है। तो ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कभी भी, जैसा हमेशा नीलेश जी बोलता है, ये कभी भी हो सकता है। मतलब पूरा
शायद जो सिस्टम डिवाइस्ड है उसमें उम्मीद है कि वो पहले महीने के पहले लॉस हिट नहीं करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है तो बाद में एंड में करेगा हिट। और जो सवाल आते थे प्रोबेबिलिटी कितना है, जो मेरा ट्रेड के हिसाब से जो मैंने इधर 3 लॉस और 15 और ये जो मैंने किया है, जो नंबर ऑफ ट्रेड्स किया है उसके हिसाब से देखेंगे तो 83% है जनवरी में, फरवरी में 89 और मार्च में अभी वो तक जो का लॉस है वो भी 100%। 10,000 का नहीं है ना, लॉस छोटा ही है ना लास्ट छोटा ही था, लास्ट तो 10,000 नहीं है। तो जनवरी क्योंकि वो कम होता है व्हेन मार्केट होता है, अप एंड डाउन, नो वो Yes. कम हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, जब तक वहां पहुंचता है बहुत छोटा हो जाता है। राइट। After bearish market for 9 days, for this every moment is unique, 9 days market moved up 325 points, कल 325 points move हुआ, तो market कहीं भी कैसे भी जा सकता है। तो these are all the situations. Basically, interpretation of fundamentals of Mark Douglas. So it can be, and every person can have some interpretation, but very nicely done, and अपने आपकी सिस्टम के साथ उसको ये किया। Yes. Understand. So again principles का ये है कि ये सेम है, ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई द एज, ये मैं एज मेरा ये है कि मैं मंथली करूंगा, जो मैंने बैक टेस्ट करके देखा है 500 OTM, 10 पॉइंट्स इन सीई प्रॉफिट लूंगा और 20 पॉइंट्स इन पी एंड 5% स्टॉप लॉस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एंड अभी तक 5 लॉस बुक किया है, 3 और 2, 3 इन जनवरी, 2 इन फरवरी। एंड टोटल ये जो ट्रेड्स है, टोटल ट्रेड 163 एडजस्टमेंट करते करते ये सब करते करते जनवरी में ज़्यादा हुआ, 163 जैसा कम होते गया, मतलब इट इज़ रिड्यूस्ड ओवरऑल। तो अभी 25 है जो अभी तक मैंने लिया है। एंड ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, देखिए आप मंथली जो स्ट्रैटेजी जो मेनी पीपल बोलते हैं कि जो लॉट ऑफ यूट्यूब जो बोलता है कि मंथली में लगाओ और एडजस्ट करो, व्हेन द स्ट्रैंगल कम्स, ट्रायंगल को स्ट्रैडल बना लो अल्टीमेटली व्हेन इट हिट्स द ब्रेक इवन। बट हियर दिस इज द प्रिंसिपल आई सेड इन द फर्स्ट स्लाइड कि ये प्रिंसिपल को ध्यान पे रखना है कि हमको जैसा मार्केट पैसा देता है उसको लेते रहना है, प्रॉफिट बुकिंग। दिस इज द की फॉर आवर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड द सिस्टम। So again errors को check करना है, which is again booking the profit and stop loss. Journal, mindset, diary and all this. Yes, and you can see that जो मैंने maintain किया है। So this is my, मेरा एक महीने का जो ट्रेड है वो एक ट्रेड है, ये अभी मैंने I am in the third cycle, third trade now in the third month. Like this I will run 30 months. Right. That will show, that will give where I will be in this whole larger cycle. Right. Yes. So now probably I think this is the last one, so we can. वो थोड़ा इक्विटी का एक बार दिखा लो ना सर, यहाँ पे सब इक्विटी वाले हैं। इक्विटी मैंने बहुत जन है इक्विटी वाले, ये थोड़ा सा कैपिटल भी अभी थोड़ा एडजस्टमेंट्स और सब थोड़ा सा ऑप्शन में आएंगे ना, तो फिर मई के बाद ज्यादा लोग करेंगे। अभी एक बार आप इक्विटी का सिस्टम दिखा दो या इक्विटी में क्या किया था वो एक्सपीरियंस बता दो, तो फिर थोड़ा उनको ना सिस्टम साइकिल करने का कॉन्फिडेंस आएगा, वो मोटिवेशन आएगा। yes, जो आपने लास्ट टाइम कहा था, yes, योर जर्नी एंड सिस्टम मैं सुनील जी क्वेश्चन ले लेंगे, एक बार इक्विटी का समझ लेते हैं, क्योंकि काफी लोग नए भी हैं, तो यानी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जिनको ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, ये थोड़ा सा हेवी है, तो उनके लिए मेरे लिए सीख यही है कि किस तरह से इन्होंने एक पूरा बिजनेस समझ के, प्रोफेशन समझ के, सिस्टमेटिक वे से वो डिवोशन से कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी सीख है। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको कोई लेक्चर में टेक्निक समझना चाहिए, कई चीजें होती है कि वो अलग लेवल पे होती है, बट हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, जो शायद आज जो सीखने को मिला शायद मेरे कोई टेक्निकल लेक्चर में भी आपको नहीं मिले, कि एक बंदा किस तरह से इतना डिवोशन और इतना सिस्टमेटिक हो सकता है ना, और उसका कैसे फर्क हो सकता है। दैट इज समथिंग वी हैव टू लर्न, क्योंकि हमें हमारी इक्विटी में यही करना है ना, यही डिवोशन से काम करना है। नॉट नेसेसरीली वी यूज सेम सिस्टम,
वी शुड कॉपी द डिवोशन, वी शुड कॉपी द सिस्टमेटिकनेस, वो हमें कॉपी करना है। ओके, ये जो था ये इक्विटी का सिस्टम है, दिख रहा है ना अभी सर जी? ट्रेडिंग प्लान भी दिखा दीजिए एक बार। हाँ हाँ, ओके, आप आपके हिसाब से दिखा मेरी। या तो फाइन, ये जो है दिस इज द इक्विटी का जो सिस्टम फॉलो कर रहा था। अभी तो मैं जो फरवरी से अभी आई एम नॉट एबल टू डिवोट फुल टाइम, तो मैं ये फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये अभी नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, ओनली ऑप्शन वाला कर रहा हूँ क्योंकि उधर टाइम कम लगता है। तो इसका ये जो ट्रेडिंग है जो रेंज ब्रेकआउट का सिस्टम है, जो इक्विटी में ही ओनली इक्विटी में चलता है और स्टॉक कैश में है, इंट्राडे सिस्टम है। अगेन मार्केट अप ट्रेंड हो, मतलब निफ्टी अप होता है डाउन होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें करते हैं। और टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स, टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। इंडिकेटर जो है वो पिवट पॉइंट और 10 EMA का सिस्टम है, मतलब इंडिकेटर्स यूज करना है। स्टॉक सिलेक्शन जो करना था वो जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम, प्राइस बिलो 10 EMA जो चलता है उसका इन आवरली टाइम फ्रेम, एटलीस्ट 3 previous hours, 3 out of 5 hourly candles. This is the requirement for stock selection. ट्रिगर जो है प्राइस 15 मिनट का कैंडल का जो है 15 मिनट का जो रेंज है उसका ब्रेक करना होगा। कंफर्मेशन जो है तो उसका नीचे का, मतलब उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक करने के बाद इधर मतलब जो प्राइस है प्रीवियस डे का लो ब्रेक करना चाहिए या सपोर्ट लेवल्स को तोड़ना चाहिए। पिवट का सपोर्ट लेवल्स इट शुड ब्रेक ऑफ प्रीवियस डे और करंट डे, कोई तो दैट इज ट्रेड एंट्री कब होगा, 1 tick और 2 ticks बिलो द ब्रोकन सपोर्ट ऑफ PDL, विच मीन्स प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे सपोर्ट 1, प्रीवियस डे सपोर्ट 2 और टुडे मतलब जो ट्रेडिंग डे है उसका सपोर्ट 1। ये इसमें से कोई भी टूटेगा तभी ट्रेड में एंट्री करना है ऑन रीटेस्ट। तो ये स्टॉप लॉस है जस्ट अबव द 15 मिनट रेंज और 10 EMA, जो जहाँ पे 10 EMA का जब ट्रेड एंट्री करते हैं वो कैंडल का 10 EMA कहाँ रहता है तो उधर स्टॉप लॉस रखना है, या PDL अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द रेंज एंड व्हाट इज योर कैपिटल, उसके ऊपर है। ये थोड़ा डिस्क्रिशनरी है मेरा इसमें। टारगेट जो है 2 to 1 और 3 to 1, ज्यादा से ज्यादा मेरे सिस्टम में 2 to 1 ही मिला मुझे। जो अगेन मैंने सिस्टम में डिफाइन किया था, जैसा सिस्टम मेरा 1 to 1 आ जाता है तो मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा। प्रॉस एंड कॉन्स जो है, मतलब इसमें डिसएडवांटेज है कि स्टॉक सिलेक्शन एंट्री मॉर्निंग सेशन में करेंगे तो मोमेंटम मिलता है, नहीं तो ज्यादा नहीं मिलता है। कैपिटल है, risk of 1% of trading capital and number of traded has to be selected accordingly. So this is the capital management का रूल है। तो मैंने आप एक एग्जांपल दिखाता हूँ उसका सेटअप का। देखिए ये सेटअप है इस दिन, मतलब ये कौन सा तारीख है, हाँ ये पिक्चर है थर्ड ऑफ शायद फरवरी है। ओके, वट एवर इज द मंथ। तो जो ये 15 मिनट का कैंडल ये है, पहला 15 मिनट का कैंडल का रेंज इधर तक है। ब्रेक होके सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो रिटेस्ट किया। वो यही दिखा रहा है, वापस शेयर करना पड़ेगा वो फोटो को। शेयर दिख रहा था एक्चुअली, वो जो आप दिखा रहे थे दिख रहा था। नहीं वो शायद सिर्फ वापस वो इमेज ही दिख रहा है, तो इसमें जाएगा वो ट्रेडिंग व्यू में जाएगा, नहीं जा रहा है वो। तो ये 15 मिनट का है। देखिए 15 मिनट का ये ब्रेक हुआ, ये पिछले दिन का लो ब्रेक हुआ, ये पिछले दिन का लो है, ये ब्रेक हो गया। करंट डे का S1 ब्रेक हुआ, S1 का ब्रेक होके S1 पे पिवट पॉइंट का S1 का रीटेस्ट हुआ, तो फिर इधर ट्रेड लेना है रीटेस्ट पे, तो उधर से नीचे आके इधर उस दिन का लो इधर मिला। सो दिस इज द वन, इधर का ये जो इधर ट्रेड लिया तो आप
बेस्ड ऑन योर रिस्क अपिटाइट, मतलब जो आपको जितना रिस्क ले सकते हो, इधर आप स्टॉप लॉस इधर रख सकते हो या इधर लेवल पे, ये लेवल पे रख सकते हो, मतलब प्रीवियस डे लो पे रख सकते हो, या इधर 15 मिनट का रेंज पे रख सकते हो, या 10 एक कैंडल EMA के use ऊपर कर रख सकते हो, या 10 EMM पे रख सकते हैं। तो दिस इज द सेटअप। तो ये सेटअप का एग्जांपल है और ये सेटअप है। ये जो है ये सेटअप है। राइट। नाउ विद द सेम सेटअप, दिस इज माय ट्रेडिंग जर्नल। 50 ट्रेड को मैंने 8 तारीख तक किया, 8 तारीख के बाद नहीं किया। देन आई स्टार्टेड डूइंग पोजिशनल, देन पोजिशनल भी इसमें छोड़ दिया मैंने। आई कुड नॉट डू पोजिशनल आल्सो। लॉन्ग ट्राई किया था मैंने, तो नहीं कर पाया मैं। आई कुड नॉट डिवोट टाइम, सो आई कुड नॉट डू दिस। तो 8 फरवरी तक मैंने, आप देखेंगे तो लगातार हर दिन का ट्रेड है, हर दिन ट्रेड है। यस यस। दिसंबर जनवरी फरवरी 8 तक कंटिन्यूअस 48 ट्रेड्स। यस, एंड एवरीथिंग इज मेंटेन्ड। सारा ट्रेड सेल का ही है, मतलब जो स्ट्रैटेजी है वो शॉर्ट के प्लान है, ऊपर ही काम। प्लान है वो ही है, शॉर्ट ही करना है। तो लॉन्ग करना नहीं है, क्योंकि मोमेंटम शॉर्ट में ही स्टेज होता है और वही मिलता है, इसके लिए शॉर्ट का ही सिस्टम है। तो शॉर्ट किया, तो एक्सपेंस 100 रुपया, एंड देन इधर जो लेट में फार्मूला लगा के रखा था, तो 100 रुपया, एंड देन आपका एंट्री कहाँ पे होगे, जो जो रीटेस्ट होगा तो उसका एंट्री पॉइंट एक का लेते हैं हम। वी विल टेक रैंडमली वन ऑफ देम। तो शायद इसको लेंगे, पेडिलाइट को, इसको लेंगे, या इधर ऑलरेडी लिंक है तो इसको लेंगे। ठीक है, इस पे ये 15 मिनट का कैंडल है, इसका ये है, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? यस। तो ये 15 मिनट का लेवल है, तो उस पे आया नीचे और जाके ये S1 का लेवल पे आया। तो S1 का लेवल पे मैंने सेल किया, मगर मार्केट पूरा नीचे नहीं आया, तो सेशन क्लोज हो गया। तो 2:1 पे। तो that is on the outcome of this trade. सो इसका रिकॉर्ड ऐसा रखता हूं मैं। ये 67 रुपीज का वो जो देख रहे थे आप, 67 रुपीज का वो मिला था बेनिफिट, प्रॉफिट, इनकम, एंड टोटल एक्सपेंस नहीं हुआ तो 167 टोटल। और मार्केट थोड़ा बुलिश थे उस दिन, शायद उसके वजह से वो पूरा नीचे नहीं आया। ये पिछले दिन का मतलब ORB तोड़ा, S1 तोड़ा, पिछले दिन का PDL तोड़ा, और पिछले दिन का S2B तोड़ा। तो ये सेशन एंड हो गया। तो सेशन एंड के बाद का ये है। तो टोटल उस दिन का जो मेरा कैपिटल फंड यूज्ड है 1020, एंड टर्नओवर, टोटल टर्नओवर वाज 10,200। मतलब ये तो ये मार्जिन ये ओके, खाली 1020 का यूज हुआ 5 टाइम्स का। सो टोटल दैट डेज रिटर्न इज 1.32%। तो दिस इज व्हाट आई जो ये पूरा ये 3 मिला के उस दिन का है। ये 3 इधर देखेंगे तो ये 3 ट्रेड का मिला के ये टोटल वैल्यू है, और उस दिन का लॉस गेन सब मिला के उस दिन का ये लॉस है। सो टोटल में ये 48 ट्रेड्स पे इसका जो टोटल है ऊपर, इसका ऊपर है मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 10,000, एंड आई गॉट रिटर्न ऑफ 2,452। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैक्स कैपिटल जो एम्प्लॉयड हुआ था वो 5,512, एंड उसका रिटर्न है 44%। इसके ऊपर का जो रिटर्न ओवर दिस मैक्स कैपिटल डिप्लॉयड 10,000 के ऊपर 25% है। ये जो है ये एवरेज है पूरा, बिन जो इनकम प्रॉफिट हुआ था उसका एवरेज, लॉस का एवरेज,
मैक्स लॉस, ये मैक्स विन, 4 टाइम्स जो कंटिन्यूस लूज हुआ था मुझे इधर लास्ट में, एंड 8 टाइम्स का विनिंग रहा ठीक। टोटल ट्रेड्स इज 50 ट्रेड्स, ये दोनों मिला के 50 ट्रेड्स है, वो दोनों लॉन्ग ट्रेड्स है। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ विन एंड लॉस। तो ये परसेंटेज रिटर्न विदाउट मार्जिन बेनिफिट का कितना रिटर्न है, दैट इज 4.47%। टोटल टर्नओवर इन मैक्स कैपिटल ऑफ द ट्रेड इज 54,000। अगर मैं मार्जिन यूज नहीं करता तो मेरा मार्जिन मैक्स कैपिटल इतना होता। एंड परसेंटेज रिटर्न ऑन मैक्स कैपिटल इज 7.15। जो पर डे अगर मार्जिन यूज नहीं किया होता तो पर डे कैपिटल ये 34,000 यूज होता। So these are all automatically comes on that thing जैसा। So this is the 50 trades का total log है। मेनली यू कैन टेल कि आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पहले इसके पहले कभी आपने साइकिल नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे कि लोग yes, I साइकिल will खुद show से also. करने के लिए टेम्प्ट हो। I will show also कि वो इधर देखिए मैंने वो भी रखा है प्री कोर्स में। मैंने क्या किया, रैंडमली लेता था मैंने, एंड यू कैन सी दैट हार्डली इट मेक्स एनी इनकम और वट एवर डाउन, मतलब पूरा का पूरा आप देखेंगे तो माइनस ही है वैसे। मतलब ये सब रैंडम ट्रेड्स है, इसका कुछ सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। ये 1 to 8 December there is nothing। So from December 8th is this log, December now से चालू किया and then continuously I am following the system। So that is where it has helped how to make log, how to make journey, मतलब जर्नल कैसा करना है, क्या करना है। एक 1-to-1 भी हुआ था नीलेश जी के साथ। उन्होंने ये इनकम का अपडेट करने के लिए बोला, ये 3-to-1 का नंबर डालने के लिए बोला है। और ये जो बाकी का जो थिंग्स है कि क्या होता है अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो ये क्या है, जो एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, वो सब ऑल दो थिंग्स जो बाद में उसका ये इसका भी ये लिया है, मतलब मार्केट होने के बाद क्या है कंडीशन, फोटो। सो ऑल दोस फोटोज, ऑल दोस थिंग्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो दोस थिंग्स आर मच बेनिफिशियल टू कंटिन्यू। मतलब इट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले निकल जाता, बेसिकली एक क्लैरिटी आ जाती है क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम। यस, सर्टेनिटी आ जाती है बिहेवियर में और बिलीफ आ जाता है थोड़ा। जी नीलेश जी। वेरी नाइस। ओके, इसके बारे में कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो। वी आर ऑलरेडी एट आई थिंक 9 मोर देन दैट। तो इसके बारे में भी कुछ पूछना है, 9:45 हुआ। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू महेश जी रिगार्डिंग दिस, एनीथिंग रिगार्डिंग हिज साइकिल और दिस सिस्टम, एनीथिंग तो पूछ लो। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन नहीं की रखा है शायद। हाँ, अभी पूछ सकते हो आप, हाथ ऊपर करके पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सर ये कह रहा था कि ये जो लास्ट पे सिस्टम दिखाया है, ये जो हम लोग मैकेनिकल सिस्टम कर रहे हैं उसी का सर ये डाटा है? वैसा ही सिस्टम है, बट वो थोड़ा सा और एडवांस है कि वो 15 मिनट की जो रेंज ब्रेकआउट ले रहे थे ना हम, उसके बाद वो और एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करने के बाद ट्रेड लेते हैं। और स्टॉप लॉस भी उनका अच्छा खासा है। और वो एक मिनट मैं एक शेयर करता हूँ, 1 सेकंड। मतलब ये ऑप्शन वगैरह नहीं है ना सर, वही चीज है? नहीं, ऑप्शन नहीं है ये। कैसे 15 मिनट का एक ट्रेंडिंग नीचे जाने वाला स्टॉक ले रहे हैं। 15 मिनट का रेंज ब्रेक होने के बाद अगला जो सपोर्ट रहेगा पिवोट का या कल का इंपॉर्टेंट, वो ब्रेक होके जब ये रिटेस्ट हो रहा है तब ये सेल कर रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा या तो यहाँ रहेगा या तो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पीछे रहेगा, रेजिस्टेंस के, या 10 EMA के पीछे रहेगा। सही है ना सर महेश जी? गिरने वाले स्टॉक पे और कंसिस्टेंटली उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक बार जब एक बंदा उसी के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करेगा तो एक कॉन्फिडेंस बिलीफ क्रिएट हो जाता है ना। हम रोज रोज अलग करते हैं तो ना घर के ना घाट के रह जाते। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। मतलब ये सही बताया ना मैंने। मेन चीज क्या है इसमें, रीटेस्ट का चेंज है, ये और सिक्योर कर दिया इन्होंने। यस, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ महेश जी।
या ओके ओके, मैंने सही बोला ना कि 15 मिनट होने के Yes, बाद yes. नेक्स्ट लेवल पर। यस यस, वेरी वेरी राइट, वेरी राइट। राइट। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? किसी का, सर- वैभव जी का हाथ ऊपर है, पूछ लीजिए अभी फटाफट, 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि फिर। हाँ बोलिए सर ना। जैसे पूछना था कि जैसा आपने हर ट्रेड में शॉर्ट ही किया है, शॉर्ट सेल ही किया है इसमें, तो ऐसा एक दिन पहले कोई स्पेसिफिक आपने कुछ नोटिस किया है कि वो बेसिस पे दूसरे दिन के लिए वो सेलेक्ट किया जाए ट्रेड इस स्ट्रेटेजी पे? नहीं, इस स्ट्रैटेजी पे एक दिन पहले हाँ एक दिन पहले करता हूँ उसमें, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन जो उस दिन का ही है। शायद आई विल शो वन ऑफ दैट, एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडेड। एक सेकंड रुकिए, मैं दिखाता हूँ। हम लोग अभी महेश जी सुबह जो सिलेक्शन डाल रहे हैं ना, वो भी ट्रेंडिंग वाला ही डाल रहे हैं कि 1 आवर में नीचे है, तो शायद वही सिलेक्शन यहाँ पे भी काम आएगा किसी को करना है तो, क्योंकि 1 आवर में 10 EMA और 20 के नीचे है, तो फिर आपका भी वही सिलेक्शन है, 10 EMA के नीचे नहीं, स्ट्रॉन्ग मैं जो मेरा सिलेक्शन जो है वो पिवोट के ऊपर है। ओके देखिए मेरा 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 सर किसी स्क्रीन दिन फिर मेरा पिवट के स्क्रीन बारे में बताइएगा सर, थोड़ा मैं दिमाग से स्लिप हो गया, इसके बारे में अलग से बताइए क्या होता है ये एक्चुअली में, कहाँ यूज करते हैं इसको, कैसे यूज मेरा करते हैं। हाँ मेरा बताए, उसको उसके लिए अलग ये सेशन लेंगे, अभी जैसे बिल्कुल सुन लेते हैं बिल्कुल फिर सर। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ यस सर। देखिए फॉर अभी जो है ये जो है ट्रेंडिंग है, आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली ये डेली पे है। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी अगर आप डेली का पिवोट लगाते हो तो ये डेली का पिवोट है। नहीं, एक सेकंड, ये डेली का नहीं है, 1 सेकंड। पिवट पॉइंट कमल जी एक मैथमेटिकल लेवल है जो मंथली वीकली डेली में आ जाती है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाती है, तो वो लेवल जो होती है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। वो कैसे आती है, क्या कैलकुलेशन है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं, वो लेवल हम इंडिकेटर से ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर लेवल होती है जो कैलकुलेट होके आ जाती है। अभी वो क्यों चलती है, क्योंकि दुनिया भर के लोग पिवोट लेवल यूज करते हैं, इसके लिए वो चलती है, और चलती है इसके लिए यूज करते हैं। लेवल जो कैसे आती है, चलिए कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, मतलब इंडिकेटर में डाल दें, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज करते सपोर्ट हैं? रेजिस्टेंस, R1 का आर का मतलब रेजिस्टेंस, इसका मतलब सपोर्ट। जो मेरा जो ये आना चाहिए जो पिवोट है, 3-4 दिन मतलब मिनिमम 3 दिन का, ये ऊपर से ये नीचे आना चाहिए। देखिए इधर इधर से इधर शायद इस दिन ऊपर है, तो ऐसा ऊपर रहता है तो मैं ये सेलेक्ट नहीं करूंगा। इधर से इधर नीचे ये पिवोट जो है, पी जो है, इधर का पी, नेक्स्ट डे का पी नीचे आना चाहिए, इधर का नेक्स्ट डे का पी इसका नीचे होना चाहिए। तो ये जब नीचे 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 रहता है तो ट्रेंडिंग जो है वो 3 दिन, लास्ट 3 डेज का ट्रेंड नीचे है, तो मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम में जो देखा था, प्लान में जो देखा था, स्टॉक सिलेक्शन इज वेयर द स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम का सिलेक्शन ये 3 दिन का पिवोट नीचे नीचे होना चाहिए, दैट इज द सिलेक्शन। ओके सर। मोस्ट ऑफ द टाइम सर आवरली में 10 और 20 के नीचे अगर आता है, 20 के नीचे 10, 10 के नीचे प्राइस, तो 99% टाइम्स वो तो नीचे नीचे ही आएगा, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड। सो यस दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, राइट? यस। ओके, क्लियर है? कुछ और यस डाउट? सर, यस सर, थैंक यू सर। जी पिवोट के बारे में अलग से एक सेशन भी लेंगे, पिवोट ट्रेडिंग के बारे में, पर अभी ये सिस्टम में समझने जैसा वही है कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके वो बहुत ही मेथोडिकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली रिजल्ट ये होता है कि पहले तो आपको रैंडमनेस समझता है, उन्होंने हर एक अपने ट्रेडिंग सिस्टम की हर एक चीज को उन्होंने वो साइकोलॉजी से जोड़ा, यानी इतना अच्छा कनेक्शन करना, समझ, उसके लिए काफी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना कि और वो जो मार्क डगलस जी के रूल है उसके ऊपर काफी फेथ भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मेरी सिस्टम उसमें कैसे बैठती, मेरा इंटरप्रिटेशन कैसे। तो वेरी नाइस वर्क महेश जी,
जी थैंक यू सो एक्चुअली मच। वही है, मैं पिछले पहले वाला जो अपॉर्चुनिटी था तब भी बोला था, मार्क डगलस का जो उसके इंग्लिश के वजह से और जो कॉन्सेप्ट बता रहा है उसके वजह से वो जो वीडियोस का लिंक डाला था, तो उसको एक बार सुनेंगे तो नहीं समझेंगे, वो 3 बार 4 बार 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 सुनना पड़ता है तभी समझेंगे, और देन उसका इंटरप्रिटेशन और उसको अप्लाई करते हैं तो फिर और अच्छा समझ में आएंगे। राइट राइट। डॉक्टर साहब पूछिए, डॉक्टर साहब कुछ कहना था। गुड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नीलेश सर, इस प्लेटफॉर्म के एएनजी के माध्यम से मैं महेश जी को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महेश जी रियली इंडीड वेरी वेल डन। आप बहुत बढ़िया। आप जो है प्रूव हुए हैं कि एक आइडियल शिष्य की तरह से हम लोगों का खैर एज इज नॉट ए कंपैरिजन इन बिकमिंग ए प्रो ट्रेडर, बट यू हैव शोन योर कैपेबिलिटीज इन द वेरी अर्ली डेज। और आप जो है नीलेश जी को सर स्पेशली मैं वो करना चाहूंगा कि जिनके ट्रेनिंग से जो रियल पर्पस है उसको आपने प्रूव कर दिया महेश जी। वेरी वेरी गुड, वेरी वेल डन सर। जी, और मेरा उसी के लिए मेरा लास्ट स्लाइड रह गया है, सो आई जस्ट वांट टू शो दैट लास्ट स्लाइड आल्सो। So this is my last slide. So my sincere thanks to Mark Douglas and Nilesh ji for bringing so much so far. वो छोटा वो राइट साइड का फोटो जो मेरा छोटा होना चाहिए वो, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी के साथ रखा है आपने। बट एक चीज है कि आज अनलकीली मार्क डगलस को हिंदी भाषा में भारतीय लोगों तक पहुंचाने की कोशिश मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई करे ना, क्यों मैं सिर्फ कर रहा हूँ तो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ ना, हर कोई करे, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट मी मेकिंग अ बिग ट्रेनिंग बिजनेस आउट ऑफ इट। इट इज अबाउट कि एक ये इस मोमेंट में इंडिया में करोड़ों लोग रात की परेशानी में सोच रहे हैं कि अरे ये मैंने आज कितना पैसा गवा दिया। दे आर इन टेरिबल पेन, एगनी, स्ट्रेस ना, फैमिली बर्बाद हो रही है। नीलेश सर, हाँ सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा इस मोमेंट पे। ये मोमेंट ऐसा है कि इस समय पे इंडक्शन जो नोवल ट्रेडर्स का इंडक्शन बहुत हुआ है अभी मार्केट में सर। सारी दुनिया पैसा कमाने का सोच रही है, सारी दुनिया कोर्सेज बेचने का सोच रही है। और आप जिस तरह से निष्काम भावना से आए हैं ना आगे, और आपके जो शिष्य हैं महेश जी वो प्रूव हुए हैं, और वो भी इतने निस्वार्थ भावना से जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इट्स इंडीड वेरी रिकमेंडेबल सर कि जैसा गुरु वैसा शिष्य। we aspire to be like you and we aspire to be like Mahesh ji. In fact, one day, I'm not planning in a very short period of time, but still I can hope कि अगर आपका मॉडल, आपकी शिक्षा का मॉडल और महेश जी को अपने सामने रखेंगे तो हम लोग एक ना एक दिन वेरिएबल टाइम पे बनेंगे, लेकिन हम अच्छे ट्रेडर्स प्रूव होंगे आगे चल के। थैंक यू सो मच। नीलेश जी, ये सिस्टम्स आज जो दिया था वो सब आप इसमें डालेंगे ना, जो आपका रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना सर, रात को आएगा लेट या कल सुबह तक आ जाएगा। अभी आज रात को, क्योंकि जूम टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस एंड देन यूट्यूब टेक्स सेम टाइम टू प्रोसेस, तो कल सुबह तक दिख जाएगा आपको रिकॉर्डिंग। चलेगा, ओके ओके, यस यस, ओके। चलो, और किसी को सवाल पूछना है या तो फिर गुड बाय नीलेश सर। एंड थैंक यू सो मच महेश जी। बोलिए ना डॉक्टर जी। शब्दों की कमी पड़ जाती है सर, लेकिन इमोशंस इतने हैं कि आई एम नॉट वेरी मच, मैं बहुत ज्यादा एडमेंट नहीं हूं कि जल्दी सीखने के, उसमें उतावला भी नहीं हूं। इमोशंस को कंट्रोल करना पहले सीखना है, आपने सिखाया है। तो वैसे कहूंगा सर, शब्दों की कमी पड़ जाती है आपके लिए और महेश जी के लिए, लेकिन रियली इंडीड थैंक्स अ लॉट सर, बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके महेश जी, ऐसे ही और भी चीजें आप जैसे महीने में एक बार मिलते रहिए, लोग भी इंस्पायर होते रहेंगे।
जरूर yes और जब भी आपको टाइम है तो आप तो मिलते ही हो, यू आर वेरी हेल्पफुल yes ना, इतने बढ़िया। सो मिलते रहेंगे। कल हम सुबह 9 बजे कुछ सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, कुछ और सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, इंडिकेटर बेस्ड या कुछ सिस्टम्स के बारे में, और दोपहर को भी एक लेक्चर होगा। तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं फिर। अभी ठीक है ना, कल सुबह 9। किसी का हाथ ऊपर है, चलो एक दो सवाल ले लो, ऐसा नहीं हो जाए किसी का सवाल नहीं ले। सुनील जी, Yes. कंवलजीत जी को पूछना है, बात कर लो आप। yes please हेलो। हाँ सुनील जी, कंवलजीत जी सॉरी। हाय सर। जी गुड इवनिंग। समझ में आया? हाँ जी गुड। सर समझ में तो आया लेकिन बहुत कम आया इंग्लिश की वजह से ना, थोड़ा यानी कि थोड़ा बच्चे की नहीं, उतना नहीं समझ पाया। यानी जैसे हिंदी में मैं ऑप्शन में एक्सप्लेन बताया कर दूंगा ना आपको। वापस। जी हिंदी में एक बार अनुवाद के लिए लेक्चर रखेंगे उसके लिए। मैं ओके समझ, ओके ओके। वो जो हाँ यानी सिस्टम कि है ना वो थोड़ी एडवांस्ड है, मैं भी समझ लूं एक बार क्या एडजस्टमेंट्स है क्या है, और फिर एक दिन मैं हिंदी में उनकी दोनों सिस्टम, दूसरी तो थोड़ी ओके आसान है, एक से दोनों एक बार मैं हिंदी में समझा हाँ दूंगा जी सिंपल फिर- भाषा में। उनको सर- पहले एक वीडियो बना के भेज दूंगा, अगर वो बोले कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है तो फिर मैं वो वीडियो रिलीज कर दूंगा। सर नीलेश सर, वैसे महेश जी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं सर। यस 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 तो फिर भी जी नहीं, फिर भी और क्लैरिटी के लिए थोड़ा एक बार मैं, मेरी समझ अगर ठीक है तो फिर वो हिसाब से वीडियो बना के उनको उनसे ओके लेके, कि जो उनकी सिस्टम है तो ओके होना चाहिए ना, क्योंकि मैं कुछ अलग बोलूँ तो वो नहीं सवाल। तो फिर वो मैं एक बार रिलीज कर दूंगा, तो फिर बाकी लोगों को जिनको दिक्कत थोड़ी सी होगी या कोई नए भी होंगे तो फिर वो अच्छा इजी है। जी सर। ठीक है कंवलजीत जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सुनील जी। हाँ 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 सर। हाँ, मेरा ये था वही जो उन्होंने पहले वाला जो सिस्टम दिखाया, उसमें डेली मतलब हम लोगों को पोजीशन क्रिएट करना है क्या 3:30 बजे? ये नहीं मेरा नहीं डेली नहीं करना है, पोजिशनल है, डेली नहीं करना है। मतलब वंस इन अ मंथ यू मीन टू से? वंस इन अ मंथ, जब ऑप्शन का एक्सपायरी चालू खुलता है, मतलब जो पहले का जब खत्म होता है उससे पहले 5-10 मिनट। यस 23rd को अगर एक्सपायर हो रहा है 23rd को 3:30 आई विल मेक अ यस पोजीशन, राइट? यस 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 एंड एंड उधर से चालू, एंड देन उसके बाद का जो प्रॉफिट और लॉस का हिसाब से एडजस्टमेंट। यानी जैसे नया मेरा ट्रेड्स। टारगेट आ रहा है आई विल एग्जिट एंड वो दिन को 3:30 बजे आई विल क्रिएट न्यू पोजीशन। नो इमीडिएट। इमीडिएट टारगेट आपको मिलता है तो फिर आपको वो मोमेंटम पकड़ना है ना। टारगेट ले लीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए, पॉकेट कर लीजिए, और तुरंत नेक्स्ट ट्रेड पे मतलब यू हैव टू एंटर। तो नेक्स्ट सेगमेंट एडिट एनी टाइम सेम मिनट वही तुरंत मिलेंगे। तो उसका अगर वो सेम, अगर मार्केट गिरते जा रहा है या ऊपर चलते जा रहा है, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट मिला, तो फिर उसको कैप्चर करने के लिए तुरंत इमीडिएटली आप क्लोज कर लीजिए और तुरंत ले लीजिए। तभी वो क्लोज करके नया पोजीशन समझ लीजिए मार्केट 100 पॉइंट गिर रहा है तो आपको 1000 पॉइंट मिल गया, 1000 रुपये मिल गया, आपने बुक कर लिया। मार्केट और 100 पॉइंट और गिरने वाला है तो आप तुरंत बुक करेंगे, तुरंत दूसरा सेकंड डाउन स्ट्राइक प्राइस में लेंगे तो और 1000 पॉइंट मिलेगा और 1000 रुपया मिलेगा। तो ऐसा चलते रहेगा वो। चलते कभी मतलब कभी रिवर्स भी हो सकता है, बट दैट इज स्टिल ओके। मतलब एट द सेम टाइम इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि 3:30 का वेट यस नहीं 3:30 इज ओनली फॉर द स्टार्ट ऑफ द साइकिल, नया साइकिल मंथली साइकिल। मंथली एक्सपायरी में ही ये कवर करना है नहीं? मंथली एक्सपायरी का सिस्टम है वो। तो वो जो आपने काउंट स्लाइड में जो काउंट मेंशन किया था, तो काउंट उसके हिसाब जो, हाँ, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट करके मैं कितने बार एंटर एग्जिट कर रहा हूँ उसके हिसाब से। ओके अभी तक और जो वीकली में महेश जी, वीकली में ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है ना वैसे कुछ। वीकली का आप बीच में एक बात बोल रहे थे, वीकली एडजस्टमेंट। वीकली में एडजस्टमेंट तो नहीं रहता है, मगर उधर रिस्क ज्यादा रहता है ना, मतलब यूर ऑप्शन। नहीं, ये सिस्टम में हाँ, बाकी कुछ बाय भी करना नहीं ना बीच में, वीकली नहीं बाय कर वीकली कुछ नहीं अगर करना है। आपको ज्यादा मूड लग रहा है तो शायद पर डे में अगर स्क्रीन टाइम अगर दे पाते हो तो, जैसा बजट दिन में तो मैं टीवी नहीं, मतलब जनवरी में आपने कुछ better ज्यादा था। ट्रेडिंग किया था, उससे वो- अच्छा वो बेहतर है, या जैसे हाँ। फरवरी मार्च में आपने ज्यादा चेंजेस नहीं किया वो अच्छा है आपके हिसाब आई वुड सजेस्ट दैट मैं जो अभी फरवरी मार्च में जो कर रहा हूँ Yes. बेटर है। लेसर ट्रेड्स इज Better, बेटर ना, better, बिकॉज यस
नहीं वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, लाइक जैसे करेंगे एक तो यस वीक, यस 1 वीक में 2 यस वीक में उसका यस। आइडिया आ जाएगा। नहीं, इसके ऊपर वापस एक बार बात हम इंटरनली हिंदी में एक बार बात करके महेश जी से समझ के कि हमारा अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं, मेरा पहले अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं उनके सिस्टम के बारे में, क्योंकि हर एक बंदे की सिस्टम अलग होती है ना। यू कैन नॉट और अब जब अगर सुनील जी या मैं चालू भी करूंगा ना तो आगे जाके वो अलग चेंज होगी। सो यू स्टार्ट समवेयर एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी इट चेंजेस, नथिंग इज परमानेंट अदर देन चेंज इज ओनली कांस्टेंट। एक्चुअली जो जो 2-3 ट्रेड का मैंने स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा था काम की वजह से, 2 दिन पहले का जो 2 दिन या 3 दिन पहले का जो चीज है, मार्केट ऊपर गया था तो मेरा सी में लॉस था। नेक्स्ट डे मार्केट पहुंचा उधर ही, वापस घूम के उधर ही पहुंचा, सेम लेवल पे पहुंचा। तब तक मेरा 2000 रुपया आई हैड बेनिफिटेड ऑन सी, जो डाउन हुआ था उसने 2000 रुपया कमा लिया। मार्केट इधर उधर मतलब 20 पॉइंट हिला उधर ओरिजिनल प्लेस से, जो 20 पॉइंट ऊपर चला, ऊपर रहा, फिर भी मेरे को 2000 रुपया मिला ओके ओके। बिकॉज यानी ऑफ कि इट। हमने कॉल अगर बाय करना है तो हमको यानी एटीएम में ही करना है ना, ओटीएम में तो नहीं करना है। 500 पॉइंट दूर से 500 पे जो सेल करना है। अच्छा अच्छा, 500 500 पॉइंट दूर। ओके ओके, 500 पॉइंट दूर पे हमको करना है, समझ गए। उनके सिस्टम में एक इंटरनली एक छोटा वीडियो बना के ना उनसे समझ के कि क्या वो सही है, फिर हम जी जी उसको रिलीज कर देंगे, सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए, एक्सटर्नल पर्पस के लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए। और फिर आप उसको अच्छे से समझ पाओगे थोड़ा, क्योंकि डीप सिस्टम है थोड़ी। जी 1-2 जी दिन में करते हैं वो काम, मंडे ट्यूसडे तक करते हैं काम। ठीक है, थैंक यू। ओके जी चलो फिर मिलते हैं कल 9 बजे मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। हाँ महेश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं फिर। थैंक यू कल सो मच। मॉर्निंग थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुबह 9 बजे। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू नाइट। चलो भाई, थैंक यू। गुड नाइट सुनील जी, महेश जी, कमलजीत जी, अमनदीप जी, मानसी जी, अंजू जी, अशोक जी, थैंक यू सर। इंद्र जी, थैंक यू सो मच, दीपक जी, धीरज जी, हितन जी, कमल जी। सबको थोड़ा लेट हो गया आज, बट बहुत कुछ सीखने को। मक्कन जी, मानसी जी, मनोज शिंदे जी, नरेंद्र गोला जी, सतीश जी, शिवाजी जी, सुभाष जी, वैभव जी, विजय जी, संतोष जी। आई होप आई डिड नॉट मिस एनी नेम। चलो गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं।